गुड मॉर्निंग क्लास। अपना नैक्सट चैप्टर है जी वैक्टर एलजैब्रा। बहुत ही ईजी चैप्टर आ, ठीक है जी। और वैक्टर बारे ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਬਾਰੇ ਆਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਕੇਲਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ which have magnitude and direction is called vector, ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ 46 ਵੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ 98 ਵੇਟ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ A to B ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਔਰ A to B ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ? ਵੈਕਟਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੈਨ ਸਕੇਲਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੇਲਰ। ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜੈਬਰਾ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ A ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਵੈਕਟਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਐਰੋ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ A, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ? A ਵੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ A B ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ A ਔਰ B, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਸਮੋਲ A। ਤੋ A B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਮੋਲ A, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਐਰੋ ਪਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ A B ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ A ਵੈਕਟਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
इन्हां दे दोनों साइड ते डंडे पा देने, ਉਹਨੂੰ लिख देना मैगनीट्यूड। ठीक है जी। और इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਮੋਲ ए ਉੱਪਰ ਐਰੋ मतलब ਵੈਕਟਰ, तो ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣੇ, 2 ਡੰਡੇ। तो मैगनीट्यूड किहदे नाल डिनोट हो जाता जी, हाँ 2 डंडियां नाल। ठीक है जी। फिर इन्हों आप बोलना मैगनीट्यूड। ठीक है जी। हुण एक होर गल, अगर मैं लिखती पई हाँ ए तो बी, मतलब मेरी डायरैक्शन है ए तो बी, तो मैं इदा लिख सकती हाँ जी, बी तो ए लिख सकते हैं आप इदा, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर मैं ए तो बी जाना आ दैन फिर बी तो ए लिखता, डायरैक्शन दोनों की सेम आ नहीं, जिहड़ा मेरा ए तो बी जा रहा उहदी डायरैक्शन तो आह आ। अगर मैं बी तो ए की लिखती हाँ तो वो तो ओपोजिशन चले जानी है ना, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते फिर, बिकॉज ए तो बी की डायरैक्शन होर आ, दैन बी तो ए की डायरैक्शन होर बनती है। इसका मतलब आ दोनों चीज़ों मैं कदे भी नहीं इदा लिख सकती, तो ये हो गया रॉन्ग प्रूव हो रहा। ठीक है। हुण देखो इन्हूं दूसरा तरीका की लिखण दा, अगर मेरा ए और बी डायरैक्शन आ, मतलब ए बी वैक्टर आ, उन्होंने मैं किद्दां लिख सकती हाँ, माइनस मतलब क्या कि ए भी लिख सकते हैं आप, बट बी ए नहीं लिख सकते सी, बट जे मैं बी फिर अगे रखना है तो वो अगे की लगा देना अपना माइनस बी ए। आ चीज़ अपनी सही आ। ए तो बी और बी तो ए नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो ए बी का रास्ता वो इधर नूं चल जाता है, जो बी ए का रास्ता है जी वो इधर नूं आ रहा, तो दोनों की डायरैक्शन ओपोजिशन चल गई। ये तो फिर सेम हो ही नहीं सकती, बिकॉज डायरैक्शन ही ओपोजिट हो गई इन्हां दियां, तो सेम तो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है जी। बट अगर मेरा ए बी आ, मैं बी अगे रखना, तो वो अगे आप की लगा देंगे माइनस, तो हुण मेरा ए बी सेम हो रहा है, डायरैक्शन उन्होंने सेम आ, बिकॉज माइनस लग गया। माइनस का मतलब कि अगर मेरा बी ए सी तो वो अगे माइनस लगाता तो की हो गया, ओपोजिशन चला गया, ओपोजिट डायरैक्शन हो गई। तो ए बी जिधर जा रहा है, दैन फिर मेरा अगर बी ए इधर सी तो मेरा माइनस बी ए किधर जाऊगा, इधर ही। तो ए बी दी और बी ए दी माइनस बी ए दी डायरैक्शन की होगी जी, सेम। तो इस गल भी ध्यान रखना है कि आप इदा नहीं लिख सकते, इदा जरूर लिख सकते हैं अगर माइनस अगे पा दिए। इन्नी गल समझ लगी जी। ठीक आ। हुण नैक्सट देखो टाइप्स ऑफ वैक्टर, वो आ जाता फस्ट जीरो वैक्टर। जीरो वैक्टर की बोलता है कि जिहदे विच इनीशियल एंड टर्मीनल पॉइंट सेम होवे। ठीक है जी। जिहदे विच इनीशियल और टर्मीनल पॉइंट सेम होवे। ठीक है। मेरा इत्थे मतलब ए पॉइंट पिया होया आ, यही मेरा इनीशियल आ, यही मेरा टर्मीनल आ, इनू की बोलते हैं जीरो जीरो वैक्टर। मतलब की है कि इनीशियल भी की आ ए और टर्मीनल पॉइंट भी किहड़ा आ ए, तो उपर एरो पा दो, दैन फिर वो किहदे कोल आ जाऊगा जीरो दे, दैन इनू की बोलते हैं फिर जीरो वैक्टर। ठीक है जी। जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब ए तो शुरू होकर इत्थे के ही रह रहा आ। ठीक है जी। तो टर्मीनल पॉइंट भी यही, इनीशियल पॉइंट भी यही, तो उन्होंने की बोल देंगे आप जी जीरो वैक्टर। इन्नी गल समझ लगी। ठीक है जी। जीरो वैक्टर का तो पता चल गया कि है जी वही मेरा जितों स्टार्ट हो रहा है, इनीशियल पॉइंट भी वही, टर्मीनल पॉइंट भी वही। इनीशियल पॉइंट आप नाल ही टर्मीनल पॉइंट लैके उपर एरो पा दें, तो की हो गया जी जीरो, कि जो खड़ा ही है उत्थे चल ही नहीं रहा। ठीक है। मैगनीट्यूड विच आ ही नहीं रहा, मतलब उन्हें कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो मैगनीट्यूड आया ही नहीं, वो एक दिन तो 2 दिन तो सेम प्लेस पर खड़ा है, उन्होंने बोलते हैं जी जीरो वैक्टर। नैक्सट आ जाता मेरा यूनिट वैक्टर। a vector whose magnitude is unity, मतलब 1 यूनिट। जिते ये तो मैगनीट्यूड जीरो सी, मैगनीट्यूड आ ही नहीं रहा। मैगनीट्यूड की सी डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कवर करना एक प्लेस तो दूसरी प्लेस तक, बट इन्हें तो कोई कवर ही नहीं किया, वो तो अपने उसी सेम पॉइंट पर खड़ा है, इनीशियल भी हुई टर्मीनल भी हुई। ठीक है जी। हुण आ गया यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर किहड़ा है, जिहदे विच एक यूनिट होवे। ठीक है जी। मतलब एक यूनिट होवे, उन्होंने की बोलते हैं यूनिट वैक्टर। उन्होंने डिनोट किहदे नाल कीता जांदा है, ए वैक्टर जां फिर ए कैप दे नाल, जिहड़ा एरो उन्होंने की बोलते हैं वैक्टर, और जी उपर आ टोपी जी उन्होंने की बोलते हैं कैप। ठीक है जी। ए कैप देना। नैक्सट आ जाता है को इनीशियल वैक्टर्स, 2 और मोर वैक्टर्स हैविंग द सेम इनीशियल पॉइंट। लाइक मेरे को इत्थे वैक्टर कोई मतलब कोई भी पॉइंट पे इनीशियल पॉइंट जीरो, दैन वो तो एक पी वैक्टर निकल रहा, एक क्यू वैक्टर निकल रहा, मतलब पी और क्यू का इनीशियल की हो गया, सेम हो गया इनीशियल पॉइंट तो। ठीक है जी। इन्हों की बोलते हैं को इनीशियल वैक्टर। लगी समझ। नैक्सट आ जाता है को लीनियर वैक्टर्स। 2 और मोर वैक्टर्स आर सेड टू बी को लीनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है जी। इफ दे आर टू द पैरेलल, मतलब वही थानू पता है पैरेलल लाइन्स आ होंदियां। ठीक है जी। जिन्हां दे अंदर मेरा डिस्टेंस डायरैक्शन सेम होवे। ठीक है जी। उन्होंने बोलना आप कोलीनियर। कोलीनियर नूं जिहड़ा इहदा मैगनीट्यूड आ, अगर इहनूं आपां इक्वल भी करना, सपोज मेरा जिहड़ा फस्ट लाइन आ, मेरी फस्ट लाइन आ, वह मैगनीट्यूड 4 आ रहा है। ठीक है जी। वह मैगनीट्यूड कितना आ रहा 4। नैक्सट लाइन आ
ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਏ ਲਾਈਨ ਸੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਦੇ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ 4, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 4 ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੀ ਬਟ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਦੁੱਗਣਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆ ਏ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਹੂਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। तो सेम चीज़ सी आई तो मतलब क्या कि मेरा मैगनीट्यूड पता है कि डिस्टेंस मैंने पता इत्थों लैके इत्थे तक 10 मीटर आ, दैन इत्थों लैके इत्थे तक भी 10 मीटर होगा, बट डायरैक्शन की हो जाती है ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है जी। तो ऑपोजिट डायरैक्शन हो जाती है, बट अगर मैं उन्हें सेम ही लिखना है तो आप फिर की कर देंगे उन्होंने नैगेटिव वैक्टर बोलते जिदा कि बी ए सी ना, हुण जे उन्होंने सेम लिखना है इक्वल लिख करना है तो ए अगे आऊगा बट नाल की आऊगा नैगेटिव आ जाऊगा, ठीक है। आ गया पोजीशन वैक्टर। पोजीशन वैक्टर किहड़ा हुंदा आ मतलब मेरे को इत्थे ओरिजिन तो स्टार्ट हो रहा और इत्थे कोई ए पॉइंट पिया होया है, वो ए तो चल रहा है, मतलब आ जिहड़ा भी मेरा डिस्टेंस आ मैगनीट्यूड आ इस वैक्टर नूं आपां की बोलदे आ पोजीशन वैक्टर, ठीक है। ये बहुत छोटिया छोटिया गल्लां जिस तुहानूं मतलब थ्रैटिकल जिहड़ा मैं बोल रही हाँ ना उहदे विच समझ आ जाणियां चाहीदियां आ, ठीक है जी। और पोजीशन वैक्टर अपना इदां लिखते हैं पी डॉट बी, मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ आ पी, और किहदा हुंदा है जी ओ पी दा जां फिर ओ ए दा, अपना ओ ए दा पोजीशन वैक्टर की आ रहा जी पी, ठीक है। इन्नी गल समझ लगी। नैक्सट आ गया एडिशन ऑफ वैक्टर्स, मतलब इन्हें ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। सपोज मेरे को एक लाइन है इत्थे ए बी, ठीक है जी, एक किधर डायरैक्शन जा रही है, इनू सी नाम देता, ए तो बी और बी तो सी तक चल रही है। दैन ए बी वैक्टर नूं पता है आप जे मैं समॉल कोई भी लैटर देना है तो मैं ये दे सकती हाँ 2 पॉइंट्स नूं, और बी सी नूं देना है तो मैं कोई भी समॉल दे सकती हाँ, ठीक है जी, लैटर उन्होंने मैं बी वैक्टर बोलता, ठीक है जी। हुण मैनूं पता है कि मेरा ए बी जिहड़ा वैक्टर आ वो किहदे इक्वल आ समॉल ए वैक्टर दे। दैन जिहड़ा मेरा बी सी वैक्टर आ जी वो किहदे इक्वल आ बी वैक्टर दे। बट अगर मैं ए और सी फाइंड करना आ तो मेरा ए सी किहदे इक्वल आ जाएगा, इन्हां दोनों नूं प्लस करके एडिशन करके ना, एडिशन मतलब ये हो गया, तो ये हो गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। इट मीनस मेरा जो ए सी वैक्टर आ वो किहदे इक्वल आ जाऊगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है जी। और ए सी वैक्टर किहदे इक्वल आना सी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, और ए बी का नाम की सी ए और बी सी का नाम की सी बी। समझ लगी एडिशन ऑफ वैक्टर्स ट्रायंगल लॉ दे विच किवें करना। और सेम तुसी पैरेललोग्राम दे विच भी कर सकते हो, ठीक है जी। वो डायगनल्स किस तरह फाइंड करने आप एक नूं ए वैक्टर दे देना, दूसरे नूं बी, पता ही आ क्या पैरेलल लाइनस हो रही हैं, ठीक है जी। तो दूसरा भी ए होएगा बी होएगा, दैन उन्होंने डायगनल्स फाइंड हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर ऑपोजिशन च जा रहे हैं दैन फिर नाल अगे ऑपोजिशन डायरैक्शन आ जूगी तो अगे वो की लग जाना है नैगेटिव। अगर सीधे जा रहे हैं सेम चा तो नाल की लग जाना पॉजिटिव, ठीक है जी। जो नैगेटिव च डायरैक्शन जाती आ ऑपोजिशन च जाती है फिर आप अगे की लगा देने होंगे नैगेटिव, ठीक है। नैक्सट देखो प्रॉपर्टीज़, नैक्सट देखो प्रॉपर्टीज़ फस्ट आ जाती है वैक्टर एडिशन इज़ अ कमूटेटिव। कमूटेटिव च कहता कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आ लैफ्ट साइड ते, तो राइट साइड ते भी आंसर की आना चाहिए बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर, मतलब ए प्लस बी आ तो दूसरी साइड की प्रूव करना पा बी प्लस ए। एसोसिएटिव की बोल दिया कि मेरा ए वैक्टर बाहर होएगा प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर ब्रैकेट के अंदर होएगा, दैन दूसरी साइड की होएगा ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर होएगा प्लस सी बाहर होएगा। इडेंटिटी एलीमेंट की बोलता है ए वैक्टर प्लस जीरो वैक्टर के इक्वल आ जाना ए वैक्टर दे, जीरो वैक्टर उत्थे की होएगा जी नल वैक्टर के एम्प्टी। दैन आ जाता है
एडिटिव इनवर्स का मतलब होंगे वही जी प्लस चीज़ नैगेटिव चले जानी, ठीक है जी। तो यदा मतलब की हो गया जोड़ा मेरा ए वैक्टर पॉजिटिव का दैन वो इनवर्स का मतलब एक नैगेटिव ए वैक्टर आ जाएगा, दैन वह रिजल्ट अपन की आऊगा जी 0 वैक्टर। इन्होंने दोनों च कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये की है ए वैक्टर प्लस 0 वैक्टर इज इक्वल टू ए, दैन की है ए वैक्टर प्लस नैगेटिव ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। आप जो कम्यूटेटिव एसोसीएटिव प्रॉपर्टीज़ आ ये आप फस्ट चैप्टर च कर चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन दे विच, ठीक है जी। हुण नैक्सट आ जाती है सबट्रैक्शन ऑफ अ वैक्टर किदां लिखदा है, ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर, प्लस माइनस माइनस तो की बन जाना ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, ठीक है जी। हुण गल आती है पोजीशन वैक्टर की, इनू ध्यान नाल देखना कि पोजीशन वैक्टर जो आप सॉल्व आउट करीदा जां लिखीदा किस तरीके नाल है। हुण देखो मेरे को ए बी लाइन सी, दैन उत्थों बी सी गई, तो इन्होंने दोनों आप जोड़ता की बन गई मेरे को ए सी लाइन। हुण ए वाली लाइनस आप मतलब मैं एक डायरैक्ट फिगर ले ली, उन्होंने मैं नाम देता ए बी और सी, ठीक है जी। जी मेरी ए बी लाइन है इनू मैं ए वैक्टर का नाम देता, और जी मेरी ए सी लाइन है इनू मैं किहदा नाम देता जी वी वैक्टर का, ठीक है। हुण मेरे को जी ए बी आ प्लस बी सी करके की बना दूगी ए सी, ठीक है जी। हुण अगर मैं ये विचों बी और सी फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड करूँगे, बी सी वैक्टर जो मैं बोलिया थानू फाइंड करो तो किस तरह फाइंड करोगे, ए सी दे विचों तुसीं ए बी माइनस कर दोगे, पॉसीबल है ना। तो मतलब जी मेरे को वड्डी प्रॉपर लाइन है वो जो मैं छोटी कैंसल करती तो मेरे को यदा आंसर आ जाऊगा, ठीक है जी। हुण देखो मेरा ए सी आ जेडे वो किनू मतलब किहना डिनोट कर रहा है बी वैक्टर ना, और ए बी किहदे नाल डिनोट कर रहा है जी ए वैक्टर ना, तो की बन गया बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है जी। हुण मैं की फाइंड करना तो बी सी, तो देखो जो इनू फाइंड करना पोजीशन वैक्टर लिखीदा किद्दां, बी सी वैक्टर लिखता, ठीक है जी। बी सी वैक्टर लिखता, इनू लिखण दा की आ पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी। जो मैं बी सी वैक्टर फाइंड करना है तो वो पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी। यदा मतलब क्या कि मेरा बी इत्थे फस्ट थे सी, ठीक है, बट पोजीशन वैक्टर सी पहलों आना है, दैन जो सी इत्थे सी ਉਹਦਾ ओपोजिशन च बी चले जाना। इन शॉर्ट तुसीं की याद रखना कि जी बी सी है ना जी चीज़ पिछे आ पहले तुसीं ਉਹਦਾ पोजीशन वैक्टर लिखना है, जी चीज़ अगे आ दैन माइनस पा के उन्होंने पिछे लिख देना वो पोजीशन वैक्टर को, ठीक है। जो भी बी सी का पोजीशन वैक्टर फाइंड करना तो की आना पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी, कि जी चीज़ अगे आ उन्हें पिछे लिखना और जी चीज़ पिछे आ उन्हें अगे लिखो जाना, ठीक है जी। जो इन्होंने आप समझते उत्ते अप्लाई करांगे फिर थानू थोड़ा ईजी समझ आऊगा। हुण तो थानू हजे बोरिंग ही लगना कि हाँ जी थ्रैटिकल आ बोली जाते हैं दसी जाते हैं वैक्टर्स पाई जाते हैं, जो समझते उपर अप्लाई करांगे ना फिर थोड़ा हाँ जी कॉन्सैप्ट के विच थानू थोड़ी दिलचस्पी होगी, समझोगे, ठीक है जी। बस यह कि पोजीशन वैक्टर में ध्यान रखना कि लिखी किद्दां है। अगर मेरे को इदा बी सी गिवन है ना तो फस्ट की आ जाना आ वाली चीज़ सी नू पहलों लिखना आ, दैन बी ने बाद विच लिखना और माइनस आना वो, ठीक है। चलो हुण सम्स देखते हैं। देखो द पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर ए वैक्टर बी वैक्टर 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर एंड ए वैक्टर माइनस 2b वैक्टर रिस्पैक्टिवली। शो की करना आप ए सी वैक्टर किहदे कोल आना चाहिए ए वैक्टर प्लस 3b वैक्टर एंड डी बी वैक्टर किहदे कोल आना चाहिए 3b वैक्टर माइनस ए वैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हुण देखो मेरे को पोजीशन वैक्टर ऑफ ए दा कितना दिता होया आ ए वैक्टर, दैन पोजीशन वैक्टर ऑफ बी कितना है जी बी वैक्टर, एंड पोजीशन वैक्टर ऑफ सी आ दैन वह की दिता होया जी मेरे को 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर, एंड पोजीशन वैक्टर ऑफ डी की गिवन है जी a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर। ये तो गिवन आ मेरे को। हुण गल उन्होंने की कि शो करो जो ए सी वैक्टर आ वो ए वैक्टर प्लस 3b वैक्टर के इक्वल आ रहा, तो की होगा जी मेरा देयरफॉर ए सी वैक्टर। हुण तुहानूं पता है कि मैं दस्सिया सी ना पोजीशन ऑफ वैक्टर लिखना किद्दां ध्यान नाल, पोजीशन वैक्टर ऑफ ए अगे आ रहा सी पिछे आ रहा, जी चीज़ पिछे आ रही है उन्हें पहलों आ जाना माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ फस्ट वाली पिछे आ जाऊगी ए।
तो पोजीशन वैक्टर ऑफ सी का कितना गिवन है मेरे को जी 2a वैक्टर, ओ सॉरी हाँ जी नहीं है 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर, दैन माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए का कितना है जी a वैक्टर। ठीक है, सॉल्व आउट कर दो। 2a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1a ਗਿਆ, आंसर इज़ 1a, नाल की आ रहा है प्लस 3b वैक्टर। तो मेरा ए सी वैक्टर शो हो गया ए वैक्टर प्लस 3b ਦੇ वैक्टर ਦੇ इक्वल। ठीक है जी, बस ये ध्यान है कि तुसीं लिख सॉल्व आउट किद्दां करना है, फॉर्मूला किद्दां लिखना। नैक्सट आ रहा डी बी वैक्टर, तो ये किद्दां पोजीशन वैक्टर ऑफ बी फस्ट आएगा माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ जो डी पहलों सी उन्हें पिछे चले जाना। ठीक है जी, हुण पोजीशन वैक्टर ऑफ बी कितना आ रहा सी बी वैक्टर, दैन साइन माइनस द पोजीशन वैक्टर ऑफ डी, तो डी का की आ रहा है ए वैक्टर माइनस 2b वैक्टर। ठीक है जी, हुण सॉल्व आउट कर दो बी वैक्टर, माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई करा दो, प्लस माइनस माइनस द ए वैक्टर माइनस माइनस प्लस 2b वैक्टर। ठीक है जी, हुण 1b वैक्टर प्लस 2b वैक्टर इज इक्वल टू 3b वैक्टर, नाल क्या आ रहा जी माइनस ए वैक्टर। तो मेरे को डी वी का आंसर कितना आ गया जी, सॉरी एरो तो रहने ही डी बी वैक्टर इज इक्वल टू 3b वैक्टर माइनस ए वैक्टर, और प्रूव करने भी उन्होंने यही किया सीगा, दोनों चीज़ां ही बोलियां सी, आप दोनों आंसरस प्रूव करते। बस ये है कि तुसीं ध्यान रखना है कि करने किस तरीके नाल, मेन आ वाली चीज़ आ पोजीशन वैक्टर नूं जिहड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया कि लिखना किद्दां, अगर तुसीं गलत लिखदे हो दैन आंसरस मैच नहीं करनगे तुहाडे। ठीक है जी, तो इस चीज़ नूं केयरफुली करना है। नैक्सट देखो तुहाडे कोल यू वैक्टर गिवन आ, वी वैक्टर गिवन आ एंड डबल्यू वैक्टर गिवन आ सारा। ठीक है जी, बोलना कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप 4i कैप प्लस 3j कैप, फाइंड द स्केलर्स a एंड b सच दैट w इज इक्वल टू au वैक्टर प्लस b वैक्टर। ठीक है जी, स्केलर्स फाइंड करने मतलब ए बी दियां तुसीं वैल्यूज़ फाइंड करनियां है, और स्केलर क्वांटिटी किहड़ी हुंदी है जिहदे विच सिर्फ मैगनीट्यूड हुंदा, डायरैक्शन नहीं हुंदी, और मैगनीट्यूड आपां दस्सिया मैगनीट्यूड की हुंदा कोई नंबर। ठीक है जी, हुण आ जाओ इनू सॉल्व आउट करदे आ। मेरे को देखो यू वी डबल्यू तो गिवन आ, ठीक है जी, यू वैक्टर गिवन आ मेरे को, दैन वी वैक्टर गिवन आ 2i प्लस j कैप, then w vector given a 4i कैप 3j कैप। ठीक है जी, हुण सॉल्व आउट करन उन्हें मैंने की क्या आ कि मतलब फाइंड की करना है मैं ए एंड बी दी वैल्यूज़ विद रिस्पैक्ट सच दैट w वैक्टर प्लस बी वैक्टर। तो हुण w का आंसर पुट कर दो, w वैक्टर कहते इक्वल है जी 4i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू ए एज इट इज़ रह जाऊगा, बिकॉज ए तो फाइंड करना है बी भी फाइंड करना है। तो ना क्या आ रहा है यू कैप, तो यू कैप का आंसर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप, फिर क्या आ रहा है जी प्लस वी एज इट इज़, दैन वी वैक्टर कितना है माइनस 2i कैप प्लस j कैप। तो सॉल्व आउट कर दो, ए नूं अंदर आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, की बन जूगा ए आई कैप प्लस 2aj कैप, इधर भी प्लस माइनस माइनस b2i कैप प्लस 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 bj कैप, तो की बन गया 4i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू ai कैप 2aj कैप प्लस माइनस माइनस 2bi कैप प्लस bj कैप। इन्नी चीज़ समझ लगी जी, इन्नी चीज़ समझ लगी। हुण आ सारी टर्म्स नूं आपां एक साइड ते रख लैंदे आ, 4i कैप प्लस 3j कैप इधरली साइड पे आया, तो उन्होंने आप दूसरी साइड लेके जाने हैं आई कैप प्लस bj कैप। ठीक है जी, हुण आह वाली सारी टर्म मेरी इधर चली जाऊगी, तो इधर क्या गया ए आई कैप प्लस 2aj कैप माइनस 2bi कैप प्लस bj कैप प्लस द 4i इधर आन के नैगेटिव द 4i, दैन प्लस द 3j इधर आन के नैगेटिव द 3j, दैन दूसरी साइड की बच गया फिर मेरे को 0। हुण आई वाली सारिया टर्म्स अलग कर लो, जे वाली सारिया टर्म्स अलग कर लो। हुण आई वाली टर्म्स की आ रहा ए दैन माइनस 2b दैन माइनस 4, ठीक है जी, प्लस हुण जे वाली टर्म्स अलग कर लो,
जेज किहड़ी आ 2a प्लस b -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हुण आई वाली टर्म्स नूं 0 के इक्वल सॉरी इधर नाल वैक्टर पैना बिकॉज सारी टर्म्स वैक्टर च जा रही है ना, तो 0 वैक्टर आएगा। तो आई वाली वैक्टर टर्म्स नूं सारियां नूं 0 के इक्वल रख दो, दूसरा जे वाली सारी टर्म नूं 0 के इक्वल रख लो। तो मेरे को बन की जाना दो इक्वेशनस a 2b -4 इज इक्वल टू 0। वैक्टर ना वैक्टर कैंसल हो जाना। ठीक है जो आप जाना तो ये की हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 2a प्लस b -3 नूं जो 0 के इक्वल रखिया इक्वेशन नंबर 2। हुण मेरे को जस्ट इत्थे की बच गया ए बी और फाइंड भी आप की कहने स्केलर से ए बी। ठीक है जी। तो 2 3 1 2 का फॉर्मूला लगा दो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी। तो ए फाइंड करनी है, बी फाइंड करनी है। 2 3 1 2 का फॉर्मूला की बोलता है फिर मेरे को, चलो करो की बनता पाया इधरों -2 -3। ठीक है जी। फिर की अपना होंदा माइनस दैन 1 इंटू -4 होर इजी करके तुम इत्थे लिख सकते हो, रफ च लिखवा दें। ठीक है जी। 1 -2 आ जाएगा, दैन इत्थे 1 आ जाएगा, दैन -4 -3 थोड़ा रफ फॉर्मूला करा रही हूँ मैं। ठीक है जी। दैन 1 2 दैन फिर -2 और 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई यही चलना होंगे। ठीक है जी। तो की हो गया -2 -3 दैन माइनस लगता होंगे फिर 1 इंटू -4। ठीक है जी। हुण नैक्सट आ जाओ -4 इंटू 2 दैन फॉर्मूले का माइनस दैन -3 इंटू 1। ठीक है जी। नैक्सट 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 तो की बन गया माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4। नैक्सट आ जाओ माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 ना मल्टीप्लाई किया 8। ठीक है जी। दैन माइनस माइनस प्लस 3 1 ना मल्टीप्लाई की आंसर इज 3। दैन नैक्सट आ जाओ 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। तो मेरे को आंसर कितना हो रहा 10 -5 5 यही आ रहा। तो उन्हें ए की जो टर्म फाइंड करनी है तो इन्हें इस टर्म के इक्वल लिख दो। 8n इज इक्वल टू 1/5। ठीक है जी। दैन की हो जाएगा ए इज इक्वल टू 10/5 कैंसल आउट हो के आंसर इज 2। सेम b -5 नूं 1/5 ते रख दो तो आंसर इज -5/5। दैन बी का आंसर कितना आ गया मेरे को -1। ठीक है जी। उन्होंने मैंने स्केलर्स फाइंड करने कहा ए एंड बी दी वैल्यूज़ तो यदा आंसर कितना आ गया 2 और बी का आंसर इज -1। हुण एक बार ध्यान देख लो कि आप किया कुछ नहीं, आप वैसे सच्ची दसीए तो आप कुछ नहीं किया। जो उन्होंने अपना क्वेश्चन दिता सी उहदे विच उन्होंने आपको आंसरस भी दिते सी। क्वेश्चन गिवन सी उहदे विच उन्होंने सॉल्व आउट करने का तरीका दसता कि किस तरह तुसीं बाय स्टैप आंसर फाइंड कर सकते हो। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आ वाली चीज़ लिखी, जो जो आप टर्म्स गिवन सी आप जस्ट उन्होंने सिंपलीफाई करी गए, सॉल्व आउट करी गए। करने तो बाद आप जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूला अप्लाई करने तो बाद आप ए और बी दियाँ वैल्यूज़ फाइंड कर लईआं। ठीक है जी। नैक्सट देखो इन अ ट्राइंगल ओ ए सी इफ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी एंड ओ ए इज इक्वल ओ ए वैक्टर के इक्वल है ए वैक्टर दे, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर, दैन वॉट इज़ द ओ सी। फर्स्ट क्या कि मेरे को ट्राइंगल आ। ठीक है जी। ओ ए सी दैन उन्होंने की किया मिड पॉइंट किहड़ा जी वह बी। ठीक है जी। दैन फिर उन्हें दसिया जो मेरा ओ ए आ वो किहड़ा वैक्टर गिवन आ मेरे को ए वैक्टर। ठीक है जी। दैन जो ओ बी आ वो की गिवन आ बी वैक्टर। मतलब एक आ वाली ट्राइंगल आ जिहदे विच मैनूं गिवन आ हुण वो की कहंदे ओ सी तुसीं दसना आ कि की होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जे मैं ए बी की गल करा ए बी वैक्टर मेरा किहदे कोल आ रहा आ ए बी वैक्टर आही इन्नी ट्राइंगल हो रही है तो किहदे कोल आ रहा आ ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर। ठीक है जी। अगर मैं ए बी देखना है तो की आ रहा मेरी इन्नी ट्राइंगल ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर। तो हुण मैं लिख के दस सकती हाँ। देखो ओ बी वैक्टर मैं एज इट इज़ रहन दा जदों मैं हुण ओ ए वैक्टर नूं चेंज करना है, मतलब ओ अगे लैके आउणी है। जो आप चेंज करीदा सी ए
ओ तो ओ ए बनाना है तो डायरैक्शन चेंज हो जानी है, बट डायरैक्शन तो मैं चेंज करनी नहीं बिकॉज सेम आ। तो नाल आपां की ला ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ लगा दीदा सी माइनस, तो की बन गया हुण मेरा ओ ए वैक्टर। तो ध्यान रखना ए ओ वैक्टर आ, तो जदों ਉਹਨੂੰ मैं ओ अगे रखिया ए पिछे रखिया तो नाल डायरैक्शन चेंज नहीं करनी सी, दैट्स वाई की लग गया मेरा माइनस। इन्नी गल समझ लगी। हुण ओ भी वैक्टर मैनूं की गिवन आ जी बी, ठीक है जी। दैन आ वाला माइनस, दैन फिर मेरा आ वाला जो ऑपोजिशन चले जाऊगा ए वैक्टर की हो गया मेरे को माइनस ए वैक्टर। अगर ए ओ पॉजिटिव ए वैक्टर आ दैन ओ ए नैगेटिव ए वैक्टर हो जाएगा, ठीक है जी। दैन यदा मेरे को आंसर ए बी का आंसर कितना आ गया बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। हुण गल आ जाओ ए सी दी, पहले तो मैं जस्ट ए बी दे कीता सी, हुण आ गया ए सी। मैं ए सी नूं किद्दां बना सकदी हाँ, ए बी अगर ए बी दे विच ए बी होर ऐड करदा तो मेरे को किहदे इक्वल आ जाना डिस्टेंस ए सी दे इक्वल आ जाना। तो इसदा मतलब क्या कि 2AB वैक्टर किहदे इक्वल आ रहा ए सी दे वैक्टर दे, मतलब ए बी प्लस एक होर ए बी जोड़ देवां तो मेरे को कितना डिस्टेंस आ जाना प्रॉपरली ए सी का, ठीक है जी। हुण देखो 2 तो है ही है, ए बी वैक्टर आपां कितना कड्ढिया बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, तो सॉल्व आउट कर दो ए सी वैक्टर किहदे कोल आ जाऊगा 2B वैक्टर, 2 नूं मल्टीप्लाई करवा दो अंदर माइनस 2A वैक्टर। इन्नी गल हुई। हुण गल की सी वो की कहंदा सी आपां नूं ओ सी फाइंड करन लई, तो ओ सी देखो नाउ ओ सी वैक्टर किहदे कोल आ रहा आ ओ सी वैक्टर ए ओ वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ए ओ वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, मतलब आह चीज़ मैं फाइंड करनी है। तो ये रिलेट कि करती ट्राइंगल आ वाली साइड और आ वाली साइड, जिदा मतलब ए बी दे कि रिलेट करती सी आ वाली साइड और आ वाली साइड। हुण गल हो रही है ओ सी की, तो ओ सी दे की रिलेट कर रही है लाइन साइड ते ओ ए और ओ सी, तो उन्होंने दोनों का प्लस, ठीक है जी। हुण ओ ए का आंसर कितना है मेरे को, ओ ए का आंसर की है जी ए वैक्टर प्लस ए सी का आंसर आप हुणे फाइंड करके हटे हैं, वो कितना आ गया जी 2B वैक्टर माइनस 2A वैक्टर, ठीक है जी। हुण माइनस 2A वैक्टर चो 1A वैक्टर का आंसर इज़ माइनस द ए वैक्टर, 2B वैक्टर एज इट इज़ दैन नाल की आ जाऊगा माइनस द ए वैक्टर। ये किहदा आंसर आया जी मेरे को ओ सी वैक्टर का। लगी समझ। पहलो आप ए बी देखिया, ठीक है जी। दैन ए बी कि पहलो ए बी तो फाइंड करना पैना ना, ए ओ ए और ओ बी गिवन आ मेरे को ओ सी उन्होंने क्या तुसीं फाइंड करो, ठीक है। बट उन्होंने फाइंड करने लिए मेरे को ए सी भी चाहिए आ ए बी भी चाहिए आ, ठीक है जी। तो आप पहलो ए बी फाइंड किया, ए बी फाइंड करने लिए की किया ए ओ प्लस ओ बी लिखिया, ठीक है। दैन मैंने पता अगर मैं उन्होंने ऑपोजिट च लिखना आ वो अगे लेके आनी है तो ना डायरैक्शन चेंज भी ना हो तो की लग जाना नाल माइनस, तो आंसर इज़ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। दैन जो आप ए सी का फाइंड करना सी ए सी मैंने पता है कि 2AB होगा, मतलब ए बी के अंदर ए बी प्लस कर दो मेरे को आ जाना जी ए सी, ठीक है जी। तो आप फिर ए सी का आंसर फाइंड किया। हुण गल आई मेन ओ सी की, जिहड़ी चीज़ उन्होंने फाइंड करन बोली सी ओ सी फाइंड कितना होना सी ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ओ ए अपन गिवन सी ए सी आप फाइंड करता और आंसर आप किहदा करता जी ओ सी वैक्टर का। लगी है छोटे छोटे, बस ये कि थोड़ा ध्यान नाल समझण दी गल आ, ईजी भी आ और छोटे भी सम आ, बस थोड़ा ध्यान नाल समझने आ। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज़ हाफ ऑफ इट। फर्स्ट की एक लैट अपने को ट्राइंगल आ डी ही आप उन्होंने मिड पॉइंट्स ले लें, ठीक है जी। हुण जो डी पॉइंट्स डी पॉइंट वो किहदा मिड पॉइंट होएगा ए बी का, दैन ई किहदा होएगा जी ए सी का, ठीक है जी। ट्राइंगल मेरे को की बन रही है ए बी सी, ठीक है। हुण जिहड़ी मेरी डी ई आ वो किहदे कोल आ रही है डी ए प्लस ए, एक वाली ट्राइंगल बन गई उपर, ठीक है। हुण जिहड़ा फिर मेरा हाफ होगा डी ए किहदा हाफ आ ए बी लाइन का और ए किहदा हाफ आ पूरी ए सी लाइन का, ठीक है जी। हाफ हाफ हो रहा, दैन हाफ अगे आ गया कॉमन ले लिया आप, तो मेरे को आ जाएगा जी मेरी डी लाइन वो कि हाफ हो जाएगी प्रॉपरली, डी लाइन कि हाफ हो जाएगी बी सी लाइन का। यही आप 10th च कॉन्सैप्ट किया हुआ है, याद आ 10th के चैप्टर्स जोड़ा अपना सी ट्राइंगल वाला वो इन्ना कंप्लीट किया हुआ। बस ये है कि हुण तुहानूं उही है कि घुमा फिरा के दस रहा, बस ये की लग रहा है मेरा ट्राइंगल ऑफ लग रहा है,
कि हाँ जी किहड़ी लाइन किहदे इक्वल आ सकदी आ। जिहदे विच पता सी कि आपां डबल करके कड्ढिआ ना, डबल करता सी, हुण इहदे विच हाफ दसना है, गल हाफ ऑफ इट दी हो रही है, तो उसे पूरी लाइन का हाफ कर दो, तो मेरे को उहदे हाफ के आंसरस आ जाणगे। ठीक आ। हुण इहदे विच उन्होंने डबल का बोलिया आ, पहले हाफ का बोलिया सीगा, हुण जिन्हां दा करना वो डबल कर देंगे, सेम वही कॉन्सैप्ट ऐड करके हो जाना। नैक्सट देखो, लैट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हैक्सागन ए बी सी डी ई एफ, फाइंड द सम्स। ठीक है, जिहदे अंदर 6 साइड होंदियां उन्होंने की बोलते हैं हैक्सागन। ठीक आ, ये तुसीं कैमिस्ट्री च भी पढ़िया आ, साइंस वाले बच्चों ने। आर्ट्स वाले आप दस दें कि जिहदे 6 साइड्स आ जाण उन्होंने बोलते हैं हैक्सागन। हुण उन्होंने की बोलिया फाइंड द सम ऑफ, आ वालियां सारियां साइड्स दित्तियां, वो कहंदे इन्हां दा सम फाइंड करना है। ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर प्लस ओ ई वैक्टर प्लस ओ एफ वैक्टर का सम की आएगा। हैक्सागन बोलिया उन्हें आप 6 साइड्स बना लिया, तो सेंटर की ओरिजिन मेरा ओ, फिर इतों देता ए बी सी डी ई एफ, बन गया सही। ठीक है जी। हुण मेन गल जिहड़ी मेरी ओ ए आ, उहदी ऑपोजिशन की है जी ओ डी। ठीक है, डायरैक्शन ऑपोजिट हो गई, बट जे मैं डायरैक्शन ऑपोजिट नहीं करना चाहती तो वो अगे आप की ला दीदा नाल माइनस। अगर मैं ओ ए वैक्टर नूं ओ डी वैक्टर लिख सकती हाँ कि जिहड़ा मेरा ओ ए वैक्टर आ उही ओ डी वैक्टर आ, लिख सकती हाँ? नो, क्यों? क्योंकि इसकी डायरैक्शन इधर आ, उसकी डायरैक्शन ऑपोजिट चल रही आ। बट यही अगर मैं ओ ए डायरैक्शन दे ओ डी डायरैक्शन जी लिखी वो अगे माइनस पा दा, यदा मतलब क्या है कि जी आ डायरैक्शन आ वो भी इधर नूं ही हो जाऊगी। इदा नहीं लिख सकते बिकॉज यदी डायरैक्शन इधर आ, दूसरे की डायरैक्शन ऑपोजिट आ। बट अगर मैं वो अगे माइनस पा दा, यदा मतलब क्या कि हुण दोनों की सेम डायरैक्शन आ, तो उन्होंने की पाया माइनस पाता अगे। सेम ओ भी आ, हुण ओ ही तो लिख नहीं सकते सी, सेम डायरैक्शन च करन लई उन्होंने अगे की पाता माइनस। सेम नैक्सट आ जाता ओ सी का, वो ओपोजिट डायरैक्शन तो लिख नहीं सकते सी, दैन नाल की पाता सेम डायरैक्शन च दिखाने लई माइनस। ठीक है जी। हुण उन्होंने की किया है कि इन्हां सारियां डायरैक्शनस जो प्लस करेंगे ओ ए प्लस ओ डी, माइनस की टर्म आ उधर जाके की हो जानी पॉजिटिव की, माइनस की टर्म उधर जाके पॉजिटिव की, माइनस की टर्म उधर जाके पॉजिटिव की। दैन सारियां दा फिर किहदे कोल आ रहा जीरो वैक्टर, जदों ओ ए माइनस का इधर जाके प्लस हो जाऊगा तो दूसरी साइड की बच जाना मेरे को जीरो। ठीक है जी। फिर इन्हां तिन्नों आपां की कर देना ऐड, और ऐड करन दे मेरे को रिजल्ट किहदे कोल आ गया जीरो वैक्टर दे। उन्होंने यही बोलिया सी फाइंड द सम, तो सम किहदे कोल आ जाऊगा जी जीरो वैक्टर दे। गल समझ लगी ध्यान आ जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ माइनस प्लस वाला अगे समझा चुकिया, हुण फिर समझाता, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना। नैक्सट भी आ के शो दैट द पॉइंट्स आपां नूं गिवन आर कोलीनियर वेयर ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लीनियर वैक्टर्स। मतलब क्या कि मेरे को सारे पॉइंट्स गिवन आ, इन्हां दी पोजीशनस वैक्टर तुहानूं हुण पता ही आ कि ए बी सी। ठीक है जी। अगर मैं ए बी का पोजीशन वैक्टर फाइंड करना, इसका मतलब क्या कि बी अगे आ जाऊगा, ए पिछे चले जाऊगा, ए आ बी आ और आ पॉइंट किहड़ा मेरे को सी। ठीक है, पुट करके तुसीं ए बी का आंसर और ए सी का आंसर फाइंड कर सकते हो। फिर देख लो पैरेलल हैगे आ नहीं पैरेलल, कोलीनियर हैगे आ जां नहीं कोलीनियर। ठीक है जी। इस तरह ही समझ आए, ईजी है, बट अगर तुसीं कॉन्सैप्ट समझोगे तो। नैक्सट देखो डायरैक्शन कोसाइंस। अपने को की है कि कोई भी मेरे को पोजीशन वैक्टर होएगा ओ पी, जो आप पिछे पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। उन्होंने आप आर वैक्टर भी बोल सकते हैं। ऑफ अ पॉइंट पी, पी किहड़ा पॉइंट जिदा मेरे को ही आ क्या ओ पॉइंट किहड़ा हो गया जी मेरा पी, तो पी के पॉइंट्स किहड़े एक्स वाई जैड। ठीक है जी। दैन जी वो डायरैक्शन का डिस्टेंस आ जा मैगनीट्यूड हो गया जी मेरे को आर वैक्टर। द एंगल्स जोड़े एंगल्स बननगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैड एक्सिस, वो कहने होंगे अल्फा बीटा गामा, तो जिन्हों का पोजीशन वैक्टर आर वैक्टर होएगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई जैड एक्सिस। ठीक है जी। इन्होंने बोलते हैं डायरैक्शन एंगल्स। दैन द कोसाइंस वैल्यूज़, इन्हों दी जिहड़ियां वैल्यूज़ होंदियां वो किहड़ियां होंदियां कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा, इन्हों की बोलते हैं कोसाइंस। ठीक है। एंगल्स किहड़े सी अपने अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी। आर वैक्टर के जिन्हों दी डायरैक्शनस किहड़ियां सी एक्स वाई जैड, और इन्हों के कोसाइंस वैक्टर्स किहड़े हो जाएंगे जां कोसाइंस वैल्यूज़ किहड़ियां हो जाएंगियां इन्हां एंगल दियां कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। ठीक है। इन्हां सारिਆਂ आप अपलाई सीधा समझ उत्ते करके दिखावांगे। ठीक है जी। वो तुहाडे लई ईजी रह जाऊगा। हुण अल्फा की लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर, दैन बीटा वाई अपॉन आर, दैन कॉज गामा जैड अपॉन आर। वही है कि जिहड़ा मेरी एक्स एक्सिस आ वो अल्फा नाल चल रही है, दैन मेरी वाई एक्सिस आ बीटा नाल, दैन जैड एक्सिस गामा नाल। ठीक है जी। तो की हुंदा है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर।
इन्हों लिख सकते हैं पॉइंट में आल्सो भी एक्सप्रैसड जो मेरा पी पॉइंट आ XYZ वाला उन्होंने आप कि लिख सकते हैं LMN के नाल भी एक्सप्रैस कर सकते हैं XYZ नूं। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी। उन्हें नोट दिता कि L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बट A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर इज नॉट इज इक्वल टू 1। ये सारिया टर्म्स जिहड़ियां आपां जो सम्स दे विच अप्लाई करांगे ना बहुत ईजी समझ आ जानियां। नैक्सट आ गया कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर, मतलब वही है एक देख लो कि X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस पॉइंट गिवन होएगा XYZ दैन जी हुण उन्हों का R वैक्टर आ उहदे नाल की लग जाना X दे नाल I Y दे नाल J Z दे नाल K, मतलब वेयर I J K आर यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरे को कोई भी पॉइंट होएगा P जिहदे अंदर होणगे XYZ एक्सिस। ठीक आ, दैन जो R वैक्टर फाइंड करना उहदे नाल मेरे को की लग जाना X दे नाल I कैप Y दे नाल J कैप Z दे नाल K कैप, और जिहड़े I J K आ ये किहड़े होणगे यूनिट वैक्टर्स, और यूनिट वैक्टर कितना हुंदा अपने कोल ऑलवेज 1। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी। तो हुण X की गल कर रहा है इत्थे, तो इहदा मतलब जस्ट X ही 1 होएगा दैन बाकी दो 0। फिर Y की गल कर रहा Y 1 होएगा बाकी दो 0। दैन फिर Z की गल कर रहा उहदे विच लास्ट Z ही 1 होएगा बाकी दो 0। ठीक है जी, यही चीज़ां आ। दैन तुसीं छोटे छोटे जोड़े फॉर्मूलाज मतलब एक आ चीज़ ध्यान च रखनी आ कि R वैक्टर आप किद्दां लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ठीक है जी, दैन जो फिर वह मैगनीट्यूड ओपन करना है रूट्स चले जाओ X स्क्वेयर प्लस Y स्क्वेयर प्लस Z स्क्वेयर। ठीक है, दैन नैक्सट ओके नैक्सट इत्थे भी A1 आऊगा बाय मिस्टेक रखा है। दैन जे आप किसी कॉन्सटेंट के इक्वल रखते हैं इस टर्म्स को कंपोनेंट्स को। ठीक है जी, सॉल्व आउट हो जाना। ये सारिया रिजल्टेंट वैल्यूज़ आप करी चलेंगे। नैक्सट आ गया वैक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर जे 2 पॉइंट्स के उत्ते मतलब पहलों तो आप P पॉइंट की गल की कि XYZ आ, अगर उस वैक्टर च अपने को एक होर वैक्टर आ जाए Q वैक्टर। ठीक है जी, तो की P तो Q 2 वैक्टर्स आते पे आ, 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो इन्हों सॉल्व आउट करने का तरीका की आ, पोजीशन वैक्टर पता ही आ P Q की Q फस्ट आ जाना P बाद में आ जाना है, तो उन्होंने दोनों के वैक्टर्स को माइनस कर दो और अपने को रिजल्टेंट जो मैगनीट्यूड च आना है उदों की आ जाना जी रूट के अंदर। ठीक है, वैसे किहड़ा फॉर्मूला तुहाडा डिस्टेंस का, और पता ही आप मैगनीट्यूड नूं की बोलते हैं डिस्टेंस ही बोलते हैं, दसी सी ना गल। ठीक है जी, चलो हुण आने सम्स के उत्ते। देखो फाइंड द सम ऑफ द वैक्टर्स A वैक्टर B वैक्टर और C वैक्टर दी वैल्यूज़ गिवन आ, वो की कहता कि इन्हों सम फाइंड करना। दैन सम फाइंड करना है तो की हो जाएगा रिक्वायर्ड वैक्टर्स किहड़े हो जाएंगे A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट कर दो। A वैक्टर की वैल्यू कितनी आ I कैप -2 J कैप प्लस K कैप, दैन प्लस B वैक्टर की वैल्यू कितनी आ -2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 5 K कैप, प्लस C वैक्टर की वैल्यू कितनी है जी I कैप -6 J कैप -7 K कैप। ठीक है जी, दैन ओपन कर दो की हो जाना I कैप -2 J कैप प्लस K कैप प्लस -2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 5 K कैप, दैन प्लस I कैप ब्रैकेट तो बाहर रखन लगे आप वैल्यूज़ नूं। ठीक है, हुण देखो जो चीज़ प्लस हो रही है मतलब 1 I कैप दैन -2 I कैप प्लस 1 I कैप 1 1 2 I कैप पॉजिटिव दे या नैगेटिव दे कैंसल हो गया, दैन माइनस द 2 J कैप माइनस द 6 J कैप, तो कितना हो गया माइनस द 8 J और प्लस द 4 J। माइनस द 8 चो गए तो की हो गया -8 चो प्लस 4 गए, आंसर इज -4 J कैप। हम आई वाली तो कैंसल हो गया, आई वाली तो सारे कट हो गया, मतलब की हो गया कि आई वाला किहड़ा बचा सिर्फ 0 I कैप। ठीक है जी, बिकॉज आ 1 + 1 2 पॉजिटिव का 2 नैगेटिव का 2 नाल कैंसल, तो मतलब मेरे को सिर्फ आई का कितना आंसर आया जस्ट 0 क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। नैक्सट आ रहा K कैप 1 K कैप प्लस 5 K कैप, आंसर इज 6 K कैप। दैन 6 दे विचों ओके नाल की आ रहा -7 K, मतलब -7 दे विचों 6 गए, आंसर इज 1 K प्लस 1 K कैप। ठीक है, एग्जैक्टली मेरा आंसर किया गया -4 J कैप सॉरी नैगेटिव द 7 आना तो नैगेटिव आना नैगेटिव द K कैप, और एक आंसर आ रहा A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर।
उन्होंने की बोलिया सीगा कि थानू ए बी सी वैक्टर्स गिवन आ, इन्हां दा सम फाइंड करो। तो सम फाइंड करना, तिन्हां नू प्लस करता, दैन तिन्हां दियां ब्रैकेट्स ओपन अप करतियां, दैन फिर देख लिया आई वाले आई दे नाल कैंसल कर देने जां जोड़ देने आ, दैन जे वाले जे दे नाल सबट्रैक्ट कर दो जां एडिशन करवा दो, दैन के वाले नू के वाले दे नाल एडिशन जां सबट्रैक्शन करवा दो। तो मेरे को आंसर कितना आ गया -4j -k। ठीक है। नैक्सट देखो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z सो दैट द वैक्टर्स ए वैक्टर और बी वैक्टर गिवन आ आर इक्वल। वो की कहते हैं कि x y z दी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए और बी वैक्टर दोनों इक्वल आ। तो मैं ए बी वैक्टर दोनों इक्वल रखता, दैन यदा मतलब उन्होंने आंसरस नू रिजल्टेंट नू भी इक्वल रख दूँगी। दैन उन्होंने की बोलिया x y z दी वैल्यूज़ फाइंड करो, मतलब आई दे नाल आई वाली कंपेयर, जे नू जे दे नाल कंपेयर, के नू के दे नाल कंपेयर। हुण x नू आई दे नाल मतलब आई वाली नू टर्म करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वल रख के 2, दैन 2j नू वाई जे दे इक्वल रखो, तो वाई का आंसर कितना आ रहा 2, दैन जैड के नू 1k दे नाल इक्वल रखो, तो जैड का आंसर कितना आ रहा जी 1। ठीक है। नैक्सट फाइंड द मैगनीट्यूड। ए वैक्टर गिवन आ, उन्हें की बोलिया इहदा मैगनीट्यूड फाइंड करना। तो मैगनीट्यूड का आप पिछले फॉर्मूला देखे चुके हैं, मतलब वही आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के कैप दैन वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। ठीक है जी। तो फिर की बन जाता सी जो मैगनीट्यूड फाइंड करना सी, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਨਾਲ रूट बन जाता सी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जैड स्क्वेयर। सेम फॉर्मूला ये लग्या है, जो का मैगनीट्यूड फाइंड करना वैक्टर का, मैगनीट्यूड का साइन पा दो तो आ सारिया टर्म्स आ एक कन्वर्ट हो जानिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जैड स्क्वेयर फाइंड करके आंसर कितना आ गया मेरा मैगनीट्यूड का 7। ठीक है। हाँ देखो आ वाला फॉर्मूला है जी मैगनीट्यूड का, जो तुम अपलाई करना। ठीक है जी। पहलों अपने को आई जे के होएगा, जो उन्होंने रूट और स्केयरिंग करेंगे तो आई जे के मेरे जो यूनिट वैक्टर्स हो जाने, तो यूनिट वैक्टर ही पता ही आ, तो उन्होंने आंसर तो की आ जाना 1 ही आ जाना। दैन 1 तुम जिस मर्जी टर्म ना मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम वही टर्म का आना। हम नैक्सट देखो, फाइंड अ यूनिट वैक्टर इन द डायरैक्शन। डायरैक्शन गिवन आ। ठीक है जी। यदा मैगनीट्यूड फाइंड कर सकते हो, मैगनीट्यूड तो पता ही है कि वैक्टर की गल हो रही है, तो वो की डायरैक्शन और मैगनीट्यूड दोनों आते। डायरैक्शन उन्होंने दी हुई है, तुम मैगनीट्यूड फाइंड कर लिया फॉर्मूला लगा के यही वाला। ठीक है जी। यूनिट वैक्टर इन द डायरैक्शन ऑफ ए, तो कितना फाइंड होंगे यूनिट वैक्टर, ए वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, ए वैक्टर ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर। ए वैक्टर थानू गिवन आ, मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर तुसी फाइंड कर लिया, उन्होंने डिवाइड करवा दो, आंसर थाडे कोल आ जाना यूनिट वैक्टर का। ठीक है। नैक्सट देखो, if a vector given a, b vector given a, c vector given a, find a vector of magnitude 6 unit, find a vector of magnitude 6 unit which is parallel to the vector this। मेरे को a b c vectors given आ, पहलों तुसी आ वाला वैक्टर फाइंड कर देना है। ठीक है जी। जो मैं इन्हू फाइंड करूँगी इसका आंसर आ जाऊगा, फिर आप की फाइंड कर देने उसका मैगनीट्यूड, तो वह मैगनीट्यूड फाइंड हो गया। हुण आ गया कि जो आप यूनिट वैक्टर किद्दां फाइंड करते हैं, वही ए वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर। ए वैक्टर मैंने कितना गिवन दिता है, ए इन द सेंस मतलब आह वाला ए वैक्टर नहीं मैं कह रही, ए वैक्टर जिहड़ा आपां आह वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है जी। इनू मैं चलो तुसी इत्थे कुछ भी डी वैक्टर ले लो, नहीं तो तुसी कन्फ्यूज़ हो जाना। ठीक है जी। इनू मैं डी वैक्टर नाम देता, जिहदे थ्रू मैं सारे सॉल्व आउट कर रही हाँ। ठीक है। मतलब डी वैक्टर के अंदर ए बी सी सारिਆਂ प्लस ਜਾਂ सबट्रैक्ट करके लिख रहे हैं, कोई टर्म आ डी वैक्टर जिहदे अंदर ए वैक्टर आ रहा, बी वैक्टर आ रहा, सी वैक्टर आ रहा। ठीक है। आप उन्होंने वैल्यूज़ पुट कीतियां, दैन सॉल्व आउट करता। फिर यूनिट वैक्टर मेरा की बोलता सीगा कि जिहड़ी चीज़ आह वाली है ना सेम वही नीचे होनी आ, बट मैगनीट्यूड च आंसर आना, तो मैगनीट्यूड च आप आंसर फाइंड करता, मेरे को इन्नी चीज़ आ गई। हुण गल विच नवीं चीज़ की है कि उन्होंने मैगनीट्यूड दिता होया, की बोलिया कि 6 यूनिट आ मैगनीट्यूड। ठीक है जी। मैगनीट्यूड कितना देता उन्होंने 6 यूनिट। तो यदा मतलब की है कि जो मेरा सारा आंसर आ रहा है आ वाली चीज़, ये मैं की मल्टीप्लाई करवा देना 6, तो यदा मतलब ये सारे आंसरस के नाल भी मैं किनू मल्टीप्लाई करवा देना 6 नू, तो मेरे को एक नवा आंसर आ जाना। आह सिर्फ पुरानी चीज़ आ, नवीं चीज़ ऐड की हो रही है तुहाडे कोल एक जिहड़ा मैगनीट्यूड दिता होएगा, उन्होंने तुसीं नाल की करवा देना उस टाइम दे मल्टीप्लाई यूनिट वैक्टर के नाल। ठीक है। स्टैप बाय स्टैप करोगे तो समझ आ जाऊगा। ठीक है जी। नैक्सट आ गया सैक्शन फॉर्मूला।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, 10th 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, +1 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ +2 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, x y ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ r ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, a b are the position vectors of the points a and b, then c is dividing point a b internally, ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ m n has the position vector, ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ R, ਮਤਲਬ OP ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ R ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ R ਵੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, MP ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ NA ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ M ਪਲਸ N, ਤੋਂ M ਪਲਸ N ਜਾਂ ਫਿਰ MN ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਔਰ BA ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ, ਕਿਹਦੇ, A ਐਂਡ P ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਲਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਫ C ਡਿਵਾਈਡਸ AB, ਆ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ C ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ C ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ AB ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ M, ਦੈਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ N ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਪਰ N ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ, ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ M = N ਆ, ਦੈਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ 10th 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, A ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ B ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ 2, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, x1 ਪਲਸ x2 ਅਪੋਨ 2 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ x ਜਾਂ y ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ B ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q, मतलब की है कि मेरे को एक लाइन आ P और Q पॉइंट थी, ठीक है जी। दैन उन्होंने का जोड़ा पोजीशन वैक्टर आ की हो रहा है R वैक्टर, P पॉइंट दी वैल्यूज़ किहड़ियां आ जी, 3A वैक्टर माइनस 2B वैक्टर, दैन Q दी किहड़ियां आ, A वैक्टर प्लस B वैक्टर। हुण रेशो गल कि रेशो किहड़ी दित्ती है जी, 2:1। इंटरनली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, 2:1। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, MB ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ NA ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ M ਪਲਸ N, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, Q, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਾ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, M B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, Q ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ N, ਦੈਨ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ P ਵੈਕਟਰ, M ਪਲਸ N, ਔਰ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਪੀਟਲ R, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਆ, ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, 2, ਦੈਨ Q ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, A ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ B ਵੈਕਟਰ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲਸ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1, ਦੈਨ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3A ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ 2B ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ M ਪਲਸ N, 2 + 1। तो फर्स्ट हजे यह इंटरनली वाला कॉन्सैप्ट हो रहा, तो मल्टीप्लाई करवा दो, 2A वैक्टर प्लस 2B वैक्टर प्लस 3A वैक्टर माइनस 2B वैक्टर डिवाइडेड बाय 3, 2 + 1 3 हो गया। हुण देखो माइनस द 2B प्लस द 2B कैंसल, दैन प्लस द 2A प्लस द 3A इज इक्वल टू 5A वैक्टर डिवाइडेड बाय 3। इन्ना आंसर आ गया फर्स्ट का। सैकेंड उन्हें गल की है एक्सटर्नली दी, एक्सटर्नली दे पॉइंट भी की है P और Q, दैन R। P दे पॉइंट्स किहड़े है 3A वैक्टर माइनस 2B वैक्टर, Q दे पॉइंट्स आ A वैक्टर प्लस B वैक्टर, ठीक है। हुण रेशो की गल हो रही है, और रेशो च आपां दस्सिया सीगा कि जदों इंटरनल आ दोनों पॉजिटिव, जदों एक्सटर्नली आ जिहड़ी फिर मेरी N आ वो नैगेटिव च हो जानी है। तो N मेरी की N के अगे की लग जाना नैगेटिव, मतलब 1 के अगे की लग जाना नैगेटिव। हुण रेशो ये नैगेटिव च आ गई है, तो अगेन फॉर्मूला यही आ, पुट करो बस प्लस की जगह तो की आ जाना मेरे को माइनस MQ माइनस NP अपॉन M माइनस N, आही चीज़ आ जानी है। हुण इहदे विच वैल्यूज़ पुट कर दो, M की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है जी। Q की वैल्यू की है A वैक्टर प्लस B वैक्टर, दैन नाल की आ रहा है माइनस N की वैल्यू कितनी है -1, P की वैल्यू कितनी है 3A वैक्टर माइनस 2B वैक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस दैन N की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है जी। ठीक है जी, समझ लग रही है, देख लो। हुण अगेन देखो की बन जाएगा, वेट आप इत्थे प्लस ही रहन देना है, जो आप डायरैक्ट माइनस पाया तो फिर इत्थे वाली माइनस नहीं लगनी, ठीक है जी। इनू प्लस ही रहन दो, आप जस्ट N की वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, N की वैल्यू जस्ट चेंज करो।
तो नैक्सट की बन गया फिर मेरे को इनू भी ओपन अप कर दो 2a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर दैन प्लस माइनस माइनस 3a वैक्टर माइनस माइनस प्लस 2b वैक्टर 2 दे प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 दैन की हो रहा है फिर उपर देखो 2a वैक्टर तो माइनस 3a वैक्टर आंसर इज माइनस 1a वैक्टर 2b वैक्टर प्लस 2b वैक्टर प्लस 4b वैक्टर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 गया आंसर इज़ 1 दैन फिर की बन रहा मेरा माइनस a वैक्टर प्लस 4b वैक्टर एक्सटर्नली का आंसर ठीक है फॉर्मूला तुसीं सेम ही रहने दो एक्सटर्नली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ पॉजिटिव तो नैगेटिव कर देनी आ तो सिर्फ n की वैल्यू चेंज कर दो बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहने दो बिकॉज जे तुसीं नैगेटिव च करोगे फिर वो प्रॉब्लम हो जानी है प्लस प्लस होने लग जाना ठीक है जी फॉर्मूला एक ही यूज़ करो बस इंटरनली और एक्सटर्नली दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस आ इंटरनली च दोनों पॉजिटिव रहणगे जो एक्सटर्नली की गल हो जाएगी n नैगेटिव च चले जानी आ बाकी ये बड़ा 10th का कॉन्सैप्ट सीगा हुण आ जाओ नेक्स्ट देखो फाइंड द पोजीशन वैक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सैगमेंट ए बी वेयर ए इज़ द पॉइंट 3 4 माइनस 2 बी इज़ द पॉइंट 1 2 4 हुण क्या उन्होंने गल की मिड पॉइंट की तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपन पता है ठीक है जी तो अपने को ए वैक्टर और बी वैक्टर मतलब ए बी वैक्टर आ ए दा पॉइंट किहड़ा आ ए वैक्टर दैन आप बी दा पोजीशन वैक्टर किहड़ा ले लिया जी बी वैक्टर ठीक है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होंदा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइडेड बाय 2 तो ए बी दी जिहड़ी लाइन का पोजीशन वैक्टर की हो जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइडेड बाय 2 ए वैक्टर बी वैक्टर दोनों प्लस कर दो डिवाइड कर दो 2 दे नाल दोनों ब्रैकेट तो बाहर रख के प्लस कर देना आई वाले आई दे नाल जे नू जे नाल के नाल आंसर आ जाना फिर कल्ले कल्ले डिवाइड कर दोगे 2 नाल दैन आंसर आ जाऊगा तुहाडा नैक्सट देखो मेरे को 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी आर कोलीनियर एंड रेशो फाइंड की करना आप ये रेशो विच इज़ बी डिवाइड्स टू ए सी मतलब मेरे को जी ए सी लाइन आ उन्होंने डिवाइड करता बी पॉइंट हुण ए बी सी 3 पॉइंट दिते आ कोलीनियर आ तो फर्स्ट क्या कि आप रीजन सैट करते हैं फाइंड की करनी है मैं रेशो तो रीजन ले लिया एक वो कि कर गया ओ ए बैक पहले तो ए बी सी सिंपल सीगे पॉइंट्स फिर मैं की लिया वैक्टर के कन्वर्ट करता तो ओ ए वैक्टर का की हो गया जो वैक्टर के जाऊगा तो ये आई जे के लग जाना एक्स वाई जैड नाल ठीक है जी दैन फिर ओ बी वैक्टर आई जे के दैन सी ओ सी वैक्टर एक्स नाल आई जे के लग गया एक्स नाल आई दैन वाई दे नाल जे दैन जैड दे नाल के कैप हुण देखो अगर मैं ए भी चीज़ फाइंड करनी हुई जिद्दां आपां वो पहलों ट्राइंगल वाला कीता सीगा ठीक है मतलब सपोज करो मैं ए सी लाइन ले लिया आ मेरा बी पॉइंट हो गया रीजन हो गया हुण जे मैं उहदे विचों ए बी फाइंड करना है तो ए बी फाइंड करना इहदा मतलब की आ कि मैं ओ बी दे विचों ओ ए नूं की कर दूँगी माइनस मतलब की होया जदों मैं ए बी फाइंड करना आ ठीक है जी तो आप फिर की कर देंगे कि ये मेरा की माइनस ओ बी वैक्टर चो माइनस ओ ए वैक्टर हो जाएगा ठीक है तो ओ बी वैक्टर का हुण मैनूं पता ही होया कि ओ बी वैक्टर मेरे को गिवन आ और ओ ए वैक्टर भी गिवन आ तो वैल्यूज़ पुट करके इन्होंने सॉल्व आउट कर देना हुण सेम अगर मैं ओ सी फाइंड करना हो जां फिर ए सी फाइंड करनी हो हुण देखो जे मैं पूरी ए सी फाइंड करनी तो क्या होना ओ सी माइनस ओ ए आ गया ना ओ सी माइनस ओ ए दोनों आप पिछे कढ़िया उन्होंने वैल्यूज़ कर लो आंसर कर लो हुण देखो फिर रेशो तो फिर भी नहीं निकली बट मैं रेशो तो फाइंड करनी है तो फिर मैं हुण इत्थे की करूँगी हुण देखना ए आंसर नूं मतलब ए बी दे आंसर नूं और ए सी दे आंसर नूं देखो सेम आ रहा ब्रैकेट च बट इत्थे नहीं आ तो इत्थे मतलब की कीता है कि मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 कीता है किदां जो मैं 5 दे नाल ये सारी टर्म नूं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होना 20 + 10 + 30 तो जो 2 नाल डिवाइड करूँगी मेरे को आंसर की देना 10 5 15 ये मतलब मैं सोच समझ के तरीके नाल बाहर कढ़िया कि जो मेरा ए बी और ए सी का अंदरला आंसर सेम आ जाए और वो रेशो भी बन जाए ए बी का आंसर आ रहा है 4 to 6 ठीक है जी और मेरा ए सी का आंसर आ रहा है 10 5 15 हम मैंने पता सी अगर मैं 5 दे नाल ये सारी टर्म नूं मल्टीप्लाई करके 2 दे नाल डिवाइड कर दूँगी तो मेरे को आही चीज़ आ जानी है और ए बी का भी आंसर आ जाना है तो यह मतलब की हो गया कि फिर इनू जो मैं बनाया ये मैं की कितना कि 5 दे नाल मल्टीपल इहदा बाहर कट के 2 नाल डिवाइड करवा के जो अंदर टर्म बची वही मेरी सेम ए बी की टर्म आ गई ठीक है जी तो यदा मतलब मेरी फिर रेशो कितनी आ रही है पैरेलल हो रही है दैन रेशो मेरी किहड़ी आ रही है 2 3 ठीक है जी कॉमन पॉइंट लेना होंदा है ए इज़ देयर कॉमन पॉइंट दैन ए बी इज़ द लाइन दा डिवाइड टू ए सी तो देख लियो कि जो आप डिवाइड करते हैं एक लाइन में जिदा आप 10th करते होंगे कि पी तो क्यू च जा रहा बिच
क्यू ਜਾਂ आर आ रहा ਜਾਂ पी आर आ रहा आ, तो 1 2 3 इधरली साइड तो दैन 2 3 1 उधरली साइड तो। ठीक है, तो यदा मतलब इतना कि जस्ट इन्ना की कॉन्सैप्ट आ कि जो इत्थे तक सम खत्म हो जाने तो बाद तुसीं सोचना है कि तुसीं किहड़ी टर्म दे नाल मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सको कि तुहाडा दोनों का आंसर सेम आ जाए, ए बी का और ए सी का, और टर्म बाहर आ जाए। ठीक है जी। हुण जिवें इत्थे देखो कि शो दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो एक तो तुहानूं पता है क्वाड्रिलेटर पिया होया है, ठीक है। दैन मिड पॉइंट्स द फॉर्मूले ए बी टू बी सी टू सी डी टू डी ए टू, मतलब वही है कि जो तुसीं ए तो बी तो सी तो डी तो ए आने हैं ना सारे फॉर्मूलाज, और मिड पॉइंट का तुसीं इन्हां दोनों नूं फिर दोनों दो दो जोड़ के फॉर्मूलाज बना के इन्हां दे आंसरस नूं सॉल्व आउट कर सकते हो। और देख लो कि सेम आ जो चीज़ बोली है कि बाइसैक्ट करते आ। ठीक है जी, ईजी आ क्योंकि आ फॉर्मूले नूं ही उन्होंने सैपरेट किया होया आ। इन्हां सम्स के अंदर कुछ नहीं आ, मतलब वही जो तुसीं पढ़ के पहलों जिहड़ियां चीज़ां पढ़ियां ना उन्होंने बस हुण एक वैक्टर दे विच मॉडिफाई कर दिता, नवीं चीज़ जस्ट एक तुहाडे कोल वैक्टर यूज़ हुई आ। बाकी तुसीं ओही आ डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सैक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, ठीक है जी। दैन ट्राइंगल हो गई, उहदियां एक साइड नूं डबल साइड किद्दां करना जां फिर वड्डी साइड नूं हाफ किद्दां करना आ, फॉर दैट ये सारियां चीज़ां आपां पढ़ चुके हैं पहलां ही। ठीक है जी, बट ये कि हुण इहदे विच जिहड़ी नवीं चीज़ आ रही है वो की आ रहा वैक्टर, तो वैक्टर नूं आपां किस तरह मॉडिफाई कर रहे हैं ना फॉर्मूलाज दे नाल। ठीक है जी, वही चीज़ चल रही आ। हुण पहलों तो आपां सिंगल मतलब ए वैक्टर हो गया, बी वैक्टर हो गया, ए वालियां टर्म्स कीतियां सी ना, सी वैक्टर्स हो गया, अलग अलग दित्तियां होईयां सी टर्म्स। हुण आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, मतलब जिहड़े अपने कोल दो वैक्टर्स होणगे उन्हां दा प्रोडक्ट, उन्हां दी मल्टीप्लाई, उहनूं की बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट जां फिर डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि डॉट की हुंदा है दिस, तो उन्होंने की बोलिया लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन द वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। दैन फिर की हुंदा है डॉट प्रोडक्ट लिखा किद्दां जांदा है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मतलब जो मैं दो प्रोडक्ट्स नूं दो वैक्टर्स का प्रोडक्ट करवाना है तो की लिखना है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, वह रिजल्ट किहदे कोल आना ए बी कॉस थीटा दे। ठीक है जी, हुण इहनूं आपां अपलाई करवावांगे सीधा ही समझ दे उत्ते जिहड़ा तुहाडे लई ईजी रह जाएगा। ठीक है जी, दैन जिहड़ा फिर मेरा थीटा होएगा प्रोडक्ट्स का लाई किहदे विच कर जाएगा, देखो दो प्रोडक्ट हो गया, इनीशियल पॉइंट किया मेरा 0, दैन एक ए प्रोडक्ट दूसरा बी प्रोडक्ट, फिर उन्हां दा की करवा देना आपां ए वैक्टर बी वैक्टर प्रोडक्ट बोल हो रहा दैन ए वैक्टर एक मेरे को दूसरा बी वैक्टर आ, इन्हां दा की करवाना आपां प्रोडक्ट करवा देना। ठीक है, और थीटा मेरा लाइज के करदा 0 तो लैके पाई तक, मतलब फस्ट वो करेगा। ठीक है जी, जो इनू प्रॉपरली इस लाइन आ वाले वैक्टर में इस तरह खोल देंगे तो एक मेरे को लाइन लवन रही 180 डिग्री की। ठीक है जी, तो पाई की वैल्यू कितनी होंदी आ 180 डिग्री। ठीक है, तो हुण आपां ये देखना है कि जिहड़ा मेरा डॉट प्रोडक्ट आ वो किहदे कोल आवे ए इंटू बी कॉस थीटा। किसी किसी केस की होंदा आइदर ए वैक्टर मेरा 0 आ जां बी वैक्टर मेरा 0, दैन थीटा इज़ नॉट आ डिफाइन एंड सच दैट केस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर किहदे कोल आ जाना 0 दे, मतलब इन्हां दोनों चों एक भी वैक्टर 0 होएगा दैन रिजल्ट तुहानूं किहदे विच मिल जाना फिर 0 च। ऑबवियस आ, एक 0 नूं तुसीं किसी टर्म दे नाल मल्टीप्लाई करोगे आंसर तुहानूं की मिलना 0 ही मिलना। ठीक है जी, दैन कमूटेटिव प्रॉपर्टी तुसीं कीती आ, उहदे विच किसी एडिशन की प्रॉपर्टी कीती सी कमूटेटिव दी ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हुण डॉट प्रोडक्ट की करनी है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि मल्टीप्लाई तो की आ बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, दैन उन्होंने की बोलिया शो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स, अगर वो 0 नहीं आ नॉन जीरो वैक्टर्स आ वैनिश हो जाते हैं इफ एंड ओनली इफ दे आर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होणगे दैन वो नॉन जीरो ही होणगे, मतलब कि कि ए वैक्टर जां बी वैक्टर दोनों चों 0 नहीं आना चाहिए कोई भी, नॉन जीरो मतलब कोई होर वैल्यू आनी चाहिए आ। परपेंडिकुलर बेस ते देखो नोट 1 आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स। आई नूं जे दे नाल डॉट प्रोडक्ट करिए तो आंसर मेरे को किहदे कोल जे डॉट प्रोडक्ट के दैन के डॉट प्रोडक्ट आई किहदे कोल आंदा सारा 0 के इक्वल। ठीक है जी, आई नूं अगर आई दे नाल करिए दैन आंसर इज़ 1, पता ही है यूनिट मतलब वो जिहड़ा आपां ए इंटू ए करके गए थे। दैन फिर के नूं के दे नाल करिए 1 आंसर, जे नूं जे दे नाल मल्टीप्लाई करांगे दैन आंसर इज़ 1। ठीक है जी, मतलब मेरा डॉट प्रोडक्ट जे जे च आ रहा 1, के च आ रहा तो भी 1, आई च आ रहा है तो भी 1। बट अगर आई जे दे नाल डॉट प्रोडक्ट च आ रहा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा जां जे के दे नाल के आई दे नाल उदों आंसर उन्हां दा 0 आना, बट जो वो इट सैल्फ होएगा आई दे नाल आई जे दे नाल जे के दे नाल के तो आंसर उन्हां दा 1 होएगा। ठीक है जी, हुण जिद्दां आही है कि ए अपना फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा ही सी,
ठीक है जी। हाँ उन्होंने अप्लाई भी करवाया हुआ आ। दैन फिर नैक्सट आ जाता है ए प्रोडक्ट ए डॉट दैन ए वैक्टर डॉट, तो वो की बन जाना ए स्क्वेयर और वह मैगनीट्यूड आपको पता ही है जो आप लिखते होंगे सीगे। दैन वह मैगनीट्यूड की है कि 2 डंडे अगे लग जाने। ठीक है जी। और इन्हों का भी आई डॉट स्केयर दैन जे कैप स्केयर दैन के कैप स्केयर इज इक्वल टू 1। जो इन्होंने सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई आ बेस सेम आ पावर च ऐड करके आंसर अगर यदा 1 च आ रहा दैन इन्हों का भी 1 च ही आऊगा। आई 10th के फॉर्मूलेज ए प्लस बी का होल स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट हुण नवीं चीज़ मॉडिफाई की करती उन्होंने उपर की पाता एरो, एरो नूं आपां की बोलते हैं वैक्टर। तो आ सारिया चीज़ां फॉर्मूलाज पुराने ही, नवीं चीज़ उन्होंने जस्ट की ऐड की हुई है एरो, मतलब वैक्टर ऐड किया हुआ। बाकी सारे कॉन्सैप्ट उही चल रहे हैं। ठीक है जी। देखो इवैल्यूएट डॉट या स्केलर, मतलब डॉट नूं स्केलर या स्केलर नूं डॉट बोल सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट। गिवन आ 3a वैक्टर माइनस 5b वैक्टर इंटू 2a वैक्टर प्लस 7b वैक्टर, यदा आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। दैन सैकेंड है इफ 2 वैक्टर्स a एंड b वैक्टर आर सच दैट दैन magnitude of a vector is equal to 2, magnitude of b vector is equal to 1 and a vector dot b vector is equal to 1, then find the value of this product। ठीक है जी। हम फर्स्टली आप देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट फाइंड किमें करीदा या इवैल्यूएट किमें करीदा, सॉल्व आउट किमें करीदा। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर इज़ 6। दैन ए वैक्टर नाल आ रहा ए वैक्टर, ये मतलब की हो गया ए वैक्टर नूं ए वैक्टर नाल करवाया। ठीक है। हुण आ भी प्लस दा भी प्लस दा साइन पाओ। 3 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई कराओ, 21 नाल की हो रहा ए वैक्टर डॉट्स नाल की आ रहा जी बी वैक्टर। फिर आ रहा मेरा माइनस। ठीक है जी। माइनस आ रहा -5 नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई करो, माइनस दा 10 नाल की हो रहा वी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। फिर की है माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई कराओ, आंसर इज़ 35। तो नाल की हो रहा है बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर। ठीक है। तो की बन गया 6, ये डबल आ, उन्हें आप पिछे करके हटे हैं ए वैक्टर मतलब की हो गया ए वैक्टर स्केयर प्लस 21 ए डॉट बी डॉट वैक्टर 10 बी डॉट ए डॉट वैक्टर सॉरी वी वैक्टर डॉट ए वैक्टर दैन माइनस 35 बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर की बनता बी स्केयर वैक्टर। ठीक है जी। इन्नी गल हुई। हुण मैं आप पिछे पढ़ के आए सी जो अपना स्केयरिंग हुंदा है मॉड्यूल्स। ठीक है। तो उदों मतलब सिंगल सिंगल आ बेस सेम आ पावर्स ऐड हो जांदियां आ। ठीक है। हुण आ वाला कम्यूटेटिव वाला ये आप पिछे करके हटे सी, की बोलिया सी उन्होंने ए डॉट बी आ, तो मेरा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर के इक्वल होएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप डॉट प्रोडक्ट की यही पढ़ी है ना। अगर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर आ दैन फिर दूसरी साइड क्या आ जाना बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, दोनों इक्वल होंगे सेम होंगे। तो यदा मतलब की आ इत्थे रख सकते हैं 6 ए वैक्टर स्केयर प्लस 21 हुण बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर मैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लिख सकती हाँ। यस। तो इतने 10 बी वैक्टर ए वैक्टर की जगह पर मैं लिखण लगी हाँ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। उन्होंने दसिया ना दोनों सेम होंगे, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी आ। ठीक है जी। हुण ये की आ गया, हुण मैं आप ये तो मेरा की आ रहा सीगा जो आप सॉल्व आउट करते थे कि फिर मैं ये भी पिछे पढ़ के हटी सी। आप हुणे पढ़ के हटे हैं कि ए वैक्टर की स्केयरिंग आप मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर की स्केयरिंग लिख सकते हैं। ठीक है जी। यही चीज़ पिछे पढ़ के हटे हैं ना आप। तो हुण इत्थे की आ जाऊगा ए वैक्टर स्केयरिंग प्लस हुण 21 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस 10 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर सेम आ रहा। 21 चो 10 गए, आंसर इज पॉजिटिव द 11 की आ रहा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस 35 अगेन बी वैक्टर की स्केयरिंग है कि लिख सकते हैं मैगनीट्यूड बी वैक्टर स्केयरिंग लिख दो बी वैक्टर की होल स्केयरिंग। इन्नी चीज़ समझ लगी कि हुण डॉट प्रोडक्ट का मेन कॉन्सैप्ट की सीगा कि तुसीं इन्हां नूं इदां नहीं कर देना हैगा हाँ वैक्टर ना वैक्टर कैंसल कर दो स्केयरिंग उदी लिख दो। नो, इन्होंने पहले प्रॉपरली स्टैप बाय स्टैप लिखना ए डॉट ए वैक्टर दैन ए डॉट बी वैक्टर दैन फिर बी डॉट ए वैक्टर दैन फिर बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर
फिर इन्हों बाय स्टैप अगे सॉल्व आउट करना। जो स्केयरिंग आ गई उस तो बाद इन्हों आप मैगनीट्यूड च लिख देना है, ठीक है, इन्हों की स्केयरिंग में। और जोड़े द ओपोजिशन आ रहे हैं फिर आप उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के उन्होंने सेम बना देना कि मेरे को जस्ट एक रिजल्ट एक प्रॉपरली इदा आ जाए, ठीक है जी। हुण नैक्सट सम च उन्होंने किया सी, देखो बी पार्ट च मैंने की दिता है, ए वैक्टर का आंसर 2 दिता है, बी वैक्टर का आंसर मैगनीट्यूड का 1 दिता है, दैन ए वैक्टर बी वैक्टर किहदे कोल दिता है 1 दे कोल। और वैल्यूज़ उन्होंने फाइंड करन ये गई आ देखो आ दोनों सेम है सम, तो इन्हों मैं सॉल्व आउट तो कर ही चुकी हाँ, तो डायरैक्ट ये आप वैल्यूज़ पुट कर दिए, ठीक है जी। तो की हो रहा 6 तो हुण ਇਹਦਾ आंसर किहदे कोल दिता उन्होंने 2 दे, तो इत्थे मैं 2 पुट करता, बट इत्थे तो सिंपल इकली ए वैक्टर का आंसर सी, बट इत्थे नाल की हो रही है स्केयरिंग प्लस 11 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर किहदे कोल दिता 1, तो 11 के नाल मैं की मल्टीप्लाई करवाऊँगी 1 माइनस 35, दैन मैगनीट्यूड ऑफ बी का आंसर कितना है 1, तो पुट कर दो 1, पर नाल उहदी की हो रही है जी स्केयरिंग, ठीक है जी। तो हुण ये की हो गया 6 × 4 प्लस 11 माइनस 35, आंसर इज 24 प्लस 11 माइनस 35, तो हुण ये की बन रहा है डायरैक्ट 35 माइनस 35, दैन आंसर मेरा ये किहदे इक्वल आ रहा जी 0 के इक्वल, ठीक है। कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह करना है प्रॉपरली उदे नहीं कर देना है, मतलब इनू जो ये मल्टीप्लाई करनी है दैन इन्हों के जोड़े वो आ वेरीएबल्स आ वैक्टर्स आ नाल आने आ, ठीक है जी। फिर करन तो बाद उन्होंने जी स्केयरिंग आ उन्होंने पता कि आप मैगनीट्यूड च लिख सकते हैं, मैगनीट्यूड च लिख देना है, दैन जोड़े ओपोजिशन उन्होंने पता है कि उन्होंने कम्यूटेटिव लॉ लगा के उन्होंने आप इक्वल बना सकते हैं, बट फिर उन्होंने सेम यही सम दिता सी नीचे भी और उहदियां वैल्यूज़ देतियां कि इन्होंने सॉल्व आउट करो, फिर आप उही उहदियां वैल्यूज़ मैंने पता सीगा कि मैगनीट्यूड ए वैक्टर की वैल्यू 2 गिवन आ, तो आप इत्थे पुट करती, बट नाल इत्थे की सी मेरी स्केयरिंग, तो आप स्केयरिंग लगाती, ठीक है। ये 1 वैल्यू दी सी, इनू मल्टीप्लाई 1 करता, अगेन इत्थे मैगनीट्यूड बी वैक्टर की वैल्यू 1 दी है, बट इत्थे नाल की सी स्केयरिंग, तो आप स्केयरिंग पुट करके सॉल्व आउट करता, ठीक है जी। देखो नैक्सट, इफ पी वैक्टर इज़ अ यूनिट वैक्टर एंड एक्स वैक्टर माइनस पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर प्लस पी वैक्टर इज इक्वल टू 80, दैन फाइंड द मैगनीट्यूड ऑफ एक्स वैक्टर, ठीक है जी। फर्स्ट मैंने गिवन की दिता उन्होंने कि पी वैक्टर इज़ अ यूनिट वैक्टर, सिंस पी वैक्टर इज़ अ यूनिट वैक्टर, यदा मतलब यूनिट वैक्टर मेरा किहदे कोल हुंदा है जी 1 दे, ठीक है जी। और चीज़ अपन की दी हुई है सॉल्व आउट करन, सम कि इक्वेशन आ एक्स वैक्टर माइनस पी वैक्टर डॉट एक्स प्लस पी वैक्टर इज इक्वल टू 80, डॉट प्रोडक्ट लगाओ, हुण एक्स में एक्स नाल मल्टीप्लाई करांगे की हो गया है एक्स डॉट एक्स, दैन फिर नैक्सट प्लस आ रहा एक्स डॉट पी वैक्टर, ओ सॉरी एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर माइनस पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर प्लस माइनस माइनस पी वैक्टर डॉट पी वैक्टर के दे इक्वल है जी 80 के इक्वल। हुण आ मेरे को की बनता पिया आ स्केयरिंग प्लस एक्स डॉट ओ सॉरी एक्स वैक्टर पी वैक्टर बस आ डॉट और वैक्टर के विच ध्यान रखना है, ठीक है जी, मेरे वांगू नहीं बोलन से मिसटेक कर देनी, पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर माइनस मैगनीट्यूड ऑफ पी वैक्टर इज इक्वल टू स्केयरिंग इज इक्वल टू 81, ठीक है जी। बिकॉज अपन पता है कि आप इन्होंने किद्दां लिख सकते हैं मैगनीट्यूड च लिख सकते हैं, ठीक है जी। दैन हुण अपन कम्यूटेटिव लॉ पता है डॉट प्रोडक्ट का की हुंदा है एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर किहदे इक्वल होएगा पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर दे, ठीक है जी। सेम चीज़ आ मतलब इत्थे मैं एक्स लगाता है, अगर पी भी आ रहा आ तो उन्हें भी इस तरह ही मैगनीट्यूड के अंदर जाना है, ठीक है जी। तो हुण इत्थे पुट कर दो प्लस एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर, हुण पी वैक्टर एक्स पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर की जगह पर मैं एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर लिख सकती हाँ, यस, तो लिख दो बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ लगाया, ठीक है जी। दैन इज इक्वल टू 80, हुण आ देखो पॉजिटिव का नैगेटिव का कैंसल हो सकते हैं, यस, तो मेरे को बच के जाऊगा जस्ट एक्स वैक्टर मैगनीट्यूड दी स्केयरिंग माइनस पी वैक्टर मैगनीट्यूड दी स्केयरिंग इज इक्वल टू 80, ठीक है जी। सॉरी थोड़ा कैमरा मूव हो गया सी, ओके एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक्स
वैक्टर माइनस पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर प्लस पी वैक्टर इज इक्वल टू 80 गिवन आ। तो आप मल्टीप्लाई करिए एक्स वैक्टर एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर, दैन फिर माइनस आया माइनस पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर, दैन प्लस माइनस माइनस पी वैक्टर डॉट पी वैक्टर किहदे कोल आ गया 80 दे। हुण पता है आपां नूं एक्स वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर किहदे कोल आंदा एक्स वैक्टर स्केयरिंग दे, तो स्केयरिंग नूं आपां की लिख सकते हैं मैगनीट्यूड ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है जी, दैन आ वाली टर्म एज इट इज़, दैन फिर वही पी वैक्टर की स्केयरिंग नूं आपां लिख सकते हैं मैगनीट्यूड ऑफ पी वैक्टर स्केयरिंग इज इक्वल टू किहदे गिवन आपां नूं जी 80 दे कोल तां दित्ता ही होया। ठीक है जी, नैक्सट आप कम्यूटेटिव लॉ लगाता इन्होंने दोनों के अगे। अपन पता है कि एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर किहदे कोल आ जी पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर दे, तो एक्स पी एज इट इज रैन तो जोड़ा मेरा फिर पी वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर आ वो जगह पर आप लिख सकते हैं एक्स वैक्टर डॉट पी वैक्टर। यस, तो आप पुट करता, दैन बाकी टर्म्स एज इट इज़। और नैक्सट देखो आ सारी टर्म प्लस दी आ सारी टर्म नैगेटिव दी कैंसल हो जाएगी, तो मेरे तो बच के गया जस्ट फिर मैगनीट्यूड ऑफ एक्स वैक्टर स्केयरिंग माइनस मैगनीट्यूड ऑफ पी वैक्टर स्केयरिंग इज इक्वल टू 80 बिकॉज आ प्लस माइनस वाली टर्म तो कैंसल हो गई। हुण नैक्सट देखो हाँ तो पता ही है हुण पी वैक्टर ऑलरेडी मैंने पता है कि ये दिता सी जी 1 दे, उन्होंने बोलिया सी ना यूनिट वैक्टर, तो नाल की हो रही उसकी स्केयरिंग ठीक ही हो गया एज इट इज़ 1 की स्केयरिंग करो आंसर इज़ 1। ठीक है जी, तो कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड पे क्यों, क्योंकि मैं फाइंड की करना है मैगनीट्यूड ऑफ एक्स वैक्टर 80। हुण नैगेटिव का 1 दूसरी साइड जाके केड़ा हो गया पॉजिटिव का 1, तो टर्म की आ गई जी मेरे को एक्स वैक्टर मैगनीट्यूड की स्केयरिंग 81 के इक्वल आ गई। वही स्केयरिंग उधर जाऊगी तो रूट च आ जाऊगी कन्वर्ट, और 81 का रूट कितना होंदा 9, तो मेरे को एक्स वैक्टर द मैगनीट्यूड का आंसर कितना आ रहा जी 9। और उन्होंने मैंने फाइंड करने भी की क्या सीगा एक्स वैक्टर मैगनीट्यूड। ठीक है जी, जहाँ मैगनीट्यूड ऑफ एक्स, तो मैगनीट्यूड ऑफ एक्स वैक्टर कितना आ गया मेरे को 9। लगी समझ। बस यह कि जो तुम डॉट प्रोडक्ट करना उन्होंने ध्यान रखना, आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं तो आप डॉट ही लगाना है। ठीक है जी, समझ लग गया। नैक्सट देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स, 2 वैक्टर्स गिवन है ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। ठीक है जी, तो की करते हैं लेट थीटा बी एंगल बिटवीन द वैक्टर्स। ठीक है जी, ए वैक्टर कितना गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वैक्टर गिवन आपां आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, हुण इन्हां दे पोजीशन वैक्टर्स तुसीं फाइंड कर सकते हो, मतलब वही वैक्टर्स नूं आपां आर वैक्टर नूं जदों फाइंड करते सी की हो गया एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जैड के, दैन एक्स आई प्लस जे वाई जे माइनस जैड के कैप। तो आप फाइंड कितना करते सी ए वैक्टर नूं अगर ए दी वैल्यू फाइंड करनी है तो ही कैप और वैक्टर्स जो हट जाने तो की हो जाना एक्स स्केयरिंग प्लस वाई स्केयरिंग प्लस जैड स्केयरिंग, और वैल्यूज़ की आ रही हैं ये एक्स दियाँ वैल्यू एक्स की 1 आ, दैन वाई की वैल्यू इतने की होगा -1, दैन जैड की कुछ नहीं है, जिहदे अगे कुछ नहीं लग्या हुंदा, इहदा मतलब ऑबवियस है, उहदे अगे की लग्या होगा 1 ही होएगा। ठीक है जी, तो एक हो गया 1 + 1 + 1, दैन ए का आंसर कितना आ गया फिर √3। सेम बी वैक्टर फाइंड करना है, वो भी सेम आही x² + y² + z², तो x की वैल्यू कितनी है 1, दैन बी वाई की वैल्यू कितनी है जी 1, दैन z की वैल्यू कितनी है -1, तो ये भी क्या हो गया 1 + 1 + 1, दैन यदा आंसर भी कितना आ गया जी √3। ठीक है, हुण जिहड़ा इहदे विच डॉट प्रोडक्ट दा आ एंगल्स की गल हो रही आ, तो आपां नूं एंगल्स का फॉर्मूला पता है कि ए बी कॉस थीटा, बट उस तो पहलों जिहड़ा ए बी कॉस थीटा आ उहदे विच हुण ए और बी दे तां आपां आंसरस फाइंड कर लए आ। ठीक है, थीटा आपां फाइंड करना आ, बट उस तो पहलों ए बी तो फाइंड करना है। मेन तुसीं फॉर्मूला देखिया है ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आई फॉर्मूला आपां रीड करके आए हैं। ए भी फाइंड कर ली तुसीं, बी भी फाइंड कर ली, देखो ए भी फाइंड कर ली, बी भी फाइंड कर ली, कॉस थीटा तुसीं फाइंड कर सकते हो एंगल तो। ठीक है, हुण फाइंड करना रह की गया ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, तो वो किद्दां फाइंड हुंदा है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का फॉर्मूला की हुंदा A1 * V1 प्लस A2 * B2 प्लस A3 * B3।
ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होंदा है A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। हाँ देखो जी लिखा पे ना फॉर्मूला, ठीक है जी। तो ध्यान रखना यही वाला फॉर्मूला है कि डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो आ वाला आप फॉर्मूला लगना। तो अपने को A1 किया, ये अगे कुछ नहीं है, तो ओबीएस आ वही XY Z ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A1 B1 C1, दैन नैक्सट वाले XY Z की होना A2 B2 C2, ठीक है। देखो फिर अपने को की बन जाएगा अगर ए वैक्टर में थोड़ा होर थोड़े लिए कर दिए A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप एंड बी वैक्टर की लिख दिए A2 I कैप प्लस B2 J कैप माइनस C2 K कैप, ठीक है जी। इन्नी गल समझ लगी, ठीक है जी। वही जोड़े XYZ आप लिखते हैं उन्होंने तुम A1 B1 C1 दे दो, बिकॉज आप वाली चीज़ फाइंड करनी है, तो ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 का फॉर्मूला ही यूज़ होएगा, ठीक है जी। हुण नैक्सट आपको पता ही है कि अगर इन्हों की जगह तो कुछ नहीं है तो की है 1 आ -1 आ +1 आ दैन 1 आ अगेन 1 आ इतने -1 आ। वैल्यूज़ आ पुट करो, A1 का आंसर कितना आ 1, दैन मेरे को फिर नैक्सट की आ रहा B1 का आंसर कितना आ -1, A2 का आंसर कितना है मेरे को, नैक्सट देखो A2 का आंसर कितना है जी -1, दैन B2 का आंसर कितना है 1, नैक्सट A3 या फिर तुसी C3 भी ले सकते हो, ठीक है जी। मतलब वही C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 या फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3 कुछ भी, बट यह है कि जो तुसी एग्जैक्ट फॉर्मूला शो करके आना पेपर फिर तो प्रॉपरली फॉर्मूला लिख के आना है। अदरवाइज़ अगर तुसी रफ च करना है एक्सप्लेन दैन फिर रफ च नाल हाई मतलब पा के लाइन तो उन्होंने उपर भी शो करके आना, डायरैक्ट आंसर नहीं लिख सकते बिकॉज मार्क्स कट्टे जाने, बिकॉज मैथ च तुहाडे उन्होंने स्टैप चैक करने आ, हो सकता तुसी चीटिंग मार के किया होवे, ठीक है जी। इसलिए शॉर्ट स्टैप नहीं करना, प्रॉपर बाय एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने पता चल सके कि हाँ जी ये स्टैप बाय स्टैप करता आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो मार्क्स कटने पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। नैक्सट देखो फिर नैक्सट क्या आ रहा मेरा 1 एंड -1, तो मल्टीप्लाई कर दो +- -1 दैन +- दैन +- -1। वेट अपना दोनों पहले पॉजिटिव आ, इतने पॉजिटिव आऊगा, ठीक है। पॉजिटिव ना नैगेटिव ना कैंसल, मेरे को आंसर कितना आ गया -1, मतलब ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर कितना आ गया -1। मेरे को 3 आंसर आ गए, एक तो ए का आंसर आ गया, बी का आंसर आ गया, दैन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर भी कितना आ गया -1। हुण मेरे को मेन चीज़ किहड़ी रह गई कॉस थीटा फाइंड करन दी, ठीक है जी। जां फिर वेट अगर थानू C1 प्रॉब्लम आनी है कि आप इत्थे C1 यूज़ नहीं किया फॉर्मूले से उपर लिखा तो वो फिर मिसटेक करूँगे तो आप की करांगे एक सैकेंड आप ये सारी टर्म दोबारा लिखते हैं, बाकी सारा टर्म सही है, जस्ट ये कि वैल्यूज तुसीं पुट करनी है ना वो तुहानूं हो जाना कि C1 ही गिवन। तो देखो इन्हें क्या लगता है, इनू लिख लो A1 इनू A2 दैन इनू A3। इन शॉर्ट आप की करते हैं कि जो A1 B1 C1 वाला कॉन्सैप्ट से वो फिर C नहीं फॉर्मूले से मिल रही सी, तुसीं मिसटेक कर देनी सी, ठीक है जी। तो आप की करते हैं ए वैक्टर नूं सारिਆਂ दे नाल ए दे देना, दैन बी वैक्टर दे नाल आप सारिਆਂ दे ਉਹਦੇ पॉइंट्स नाल बी दे देना, एंड दैन फिर बी वैक्टर ये तुहाडे लिए ईजी रह जाऊगा ए वाला कॉन्सैप्ट लर्न करना। बी आई कैप B1 दैन प्लस B2 J कैप माइनस B3 K कैप, ठीक है जी। वही ए वैक्टर नूं सारे आप ए नाम देते, दैन बी वैक्टर नूं सारा आप बी नाम देता। हुण तुहानूं फॉर्मूले च कन्फ्यूजन नहीं आऊगी, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। तो देखो A1 दे अगे कुछ नहीं है तो मतलब की है कि 1 होएगा, 1 पुट करता, दैन नाल B1 दे अगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होएगा, 1 पुट करता, ठीक है जी। नैक्सट A2 के अगे माइनस आ तो माइनस ए वैल्यू आ जाऊगी, दैन B2 के अगे प्लस आ तो प्लस वैल्यू आ जाऊगी। नैक्सट A3
ਦੇ ਅੱਗੇ कुछ नहीं आ तो ਇਹਦਾ मतलब पॉजिटिव का 1 दैन इत्थे B3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ नैगेटिव तो ਇਹਦਾ मतलब नैगेटिव का 1 ਹੁਣ समझ लगी सॉल्व आउट करके ये बड़ा ईजी है ना इस तरीके नाल कर लियो ठीक है जी। चलो हुण इन्नी चीज़ हो गई हुण नैक्सट इस फॉर्मूले च अप्लाई करते हैं की हो रहा नाउ फॉर्मूला की है जी अपने को ए वैक्टर डॉट वी वैक्टर इनटू ए बी कॉस थीटा ठीक है जी। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की आप हुणे वैल्यू देखिए कितनी आई -1 दैन ए दी वैक्टर ए की वैल्यू कितनी आप कड्ढी आ √3 बी की वैल्यू कितनी कड्ढी आ जी √3 दैन कॉस थीटा एज इट इज़ ठीक आ। तो यदा मतलब की हो गया -1 रूट ना रूट कैंसल होके एक वैल्यू आ रहा यानी 3 नाल की आ गया कॉस थीटा। हुण कॉस थीटा की वैल्यू तो आप फाइंड ही करनी है प्रॉपरली तो यदा मतलब जो इधर 3 मल्टीप्लाई आ दूसरी साइड जाके की हो गया मेरे को डिवाइड ठीक है। हुण थीटा की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने क्या सीगा मैनू कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स तो एंगल आप फाइंड करना तो एंगल आप लिया सिर्फ लेट थीटा थीटा की वैल्यू फाइंड करांगे तो जो कॉस इधर आ दूसरी साइड जाके की हो जाएगा कॉस इनवर्स। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ मेरा एंगल आऊगा ए और बी वैक्टर के अंदर वो कितना आऊगा थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स -1/3 लगी समझ। जो उन्होंने गल की सी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वैक्टर्स तो अब मैंने फॉर्मूला तो पता चल गया सी भी आ यूज़ होना बट फॉर्मूला आ यूज़ होना ये मैंने की चाहिए ए की वैल्यू चाहिए सी बी की वैल्यू चाहिए सी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की वैल्यू चाहिए सी ऐ सारिया पहलों आप वैल्यूज़ इनू इत्थे सॉल्व आउट किया सारिया वैल्यूज़ लईयां फिर जाके लास्ट ते आपां इन्हां नूं फॉर्मूले दे विच पुट करवाया और अपने कोल थीटा दा आंसर आ गया ठीक है जी। नैक्सट देखो जिवें फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स ए प्लस बी एंड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इफ ए वैक्टर गिवन आ अपने कोल बी वैक्टर गिवन आ आपां इन्हां दे एंगल्स फाइंड करने आ ठीक आ। तो फस्ट अपने कोल ए और बी गिवन आ तो उन्हां दोनों नूं प्लस कर दो दोनों एंगल्स में ऐड करता मेरे को आंसर आ गया दैन फिर उन्होंने दोनों एंगल्स में सबट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाऊगा ठीक है। फिर उन्होंने दोनों का की करना आप मैगनीट्यूड तो पता ही आ वही x² प्लस y² ठीक है जी। दैन वही जोड़े थोड़े आंसर आ रहे हैं x कितना आ रहा ये 5 दैन y कितना आ रहा इधर 1 ठीक है जी। सेम इधर टर्म्स में आप कर दिता मेरे को ए प्लस बी का मैगनीट्यूड ए माइनस बी का मैगनीट्यूड आ गया। फॉर्मूला गल एंगल की हो रही है और मेरा फॉर्मूला की बोलता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ठीक है। हुण मेरे को कॉस थीटा मैं फाइंड करना है ठीक है। इट मीनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर तो एज इट इज़ हुण जिहड़ा ए बी इधर मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो जाएगा डिवाइड ठीक है जी। तो तुसीं आ दो चीज़ां तो फाइंड कर चुके हैं तो इत्थे फॉर्मूला आ देखना नहीं कि नवीं चीज़ कित्थों आ गई आ कुछ नहीं नवा आया जस्ट आई फॉर्मूला कॉस थीटा इधर आ गया जिहड़ा ए बी इधर मल्टीप्लाई च सी दूसरी साइड जाके जस्ट डिवाइड होया आ ठीक है जी। तो उन्होंने दी वैल्यूज़ पुट करतियां अपने को थीटे का आंसर कितना आ गया 90 डिग्री ठीक है। तो छोटिया छोटिया चीज़ां देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना जी हाँ जी आ कित्थों आ गया तो आप पढ़िया नहीं डिवाइड वाला कॉन्सैप्ट कुछ नहीं है जस्ट फॉर्मूले ही थोड़ा मॉडिफाई करता अगले स्टैप आई होप हुण तुहानूं डॉट प्रोडक्ट आ गया होएगा किस तरह आप सॉल्व आउट करना है दैन मैगनीट्यूड किद्दां लेना है दैन फिर जो एंगल किद्दां फाइंड करना वह फॉर्मूला किस तरह लेना है और वह फिर फॉर्मूलाज दी वैल्यूज़ नूं किद्दां अलग अलग करके इकला इकला करके सॉल्व आउट करनी है ठीक है जी। नवीं चीज़ कुछ नहीं आ रही बस ये है कि जिहड़ी तुसीं चीज़ करनी आ उन्होंने थोड़ा ध्यान नाल करना है बस। नैक्सट देखो प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेन ज्योमैट्री एंड ट्रिग्नोमैट्री हुण वही आ वापस ये साढ़े को ज्योमैट्री यूज़ होएगी दैन ट्रिग्नोमैट्री यूज़ होएगी। अगर फॉर्मूलाज याद ने सारे कॉन्सैप्ट्स याद ने ट्रिग्नोमैट्री दे ज्योमैट्री दे फिर तो ईजी आ पता है सब नूं। जिवें फस्ट है यूजिंग बस नवीं गल तुहानूं दस्सिआ कि नवां चीज़ ऐड क्या होया वैक्टर बाकी फॉर्मूलाज वही चलते आ रहे हैं ठीक है जी। कोई नवा कॉन्सैप्ट देखने को मिल रहा है ठीक है जी अदरवाइज़ तो सारे नवा आ बिकॉज वैक्टर आ गया तो नवीं चीज़ ही आ गई आ बट यह है कि पुरानिया चीज़ों को मॉडिफाई करता गया वो ठीक है जी। हुण देखो फस्ट क्या यूजिंग वैक्टर्स प्रूव कोसाइन फॉर्मूला आपको एक फॉर्मूला दिता है कहते इन्हूं प्रूव करना है ठीक है जी। तो हुण आपां की लिया एक ट्रायंगल ले ली कोसाइन का मतलब क्या है आप देख लिया सी ये मेरे को पॉइंट्स भी आ रहे हैं दैन एंगल्स भी आ रहे हैं और कोसाइनस भी आ रहे हैं ठीक है जी। पिछे आप यही पढ़ के हटे हैं मेरे को एक ABC ठीक है। अगर इन्हों मैं प्रॉपरली ओपन अप कर दूँ कि होना 180 डिग्री तो बट इन्ना का एंगल जो आ सारा मेरा 180 डिग्री है दैन इन्ना एंगल माइनस करूँगी कि हो जाना 180 डिग्री माइनस सी सेम 180 डिग्री माइनस ए 180 डिग्री माइनस
बी, ए बी सी। और जी मेरी बी सी लाइन है उन्होंने प्रॉपर मैं क्या दिता दसिया से ना, अगर ए बी लाइन है मेरे को प्रॉपरली ए वैक्टर बी वैक्टर इनीशियल और टर्मिनल पॉइंट, तो उन्होंने जो मैं इंग्लिश का स्मॉल कोई लैटर देना है तो उन्होंने एक सिंगल लैटर दे सकते हैं। तो इनू सिंगल लैटर उन्होंने देता ए वैक्टर बी वैक्टर और इनू की देता सी वैक्टर। ठीक है जी। दैन बी सी ए वैक्टर हो गया, सी ए बी वैक्टर हो गया, ए बी सी वैक्टर हो गया। इन छोटा अगर इन्होंने मैं वैक्टर्स हटा दूँ तो यह मतलब की हो गया बी सी जो पॉइंट आ वो बी सी लाइन आ उन्होंने ए नाम देता, सी लाइन नू बी नाम और ए बी लाइन नू सी नाम। ठीक है जी। हुण नाउ ए प्लस बी, अगर मैं ए और प्लस बी करा तो किहदे इक्वल आ जांदा आ, माइनस सी दे, क्योंकि सी दे इक्वल आएगा डायरैक्शन चेंज हो जानी आ, प्रॉब्लम आ जानी आ। तो आप की देता माइनस सी दे, उस तो बाद की करती आप उन्होंने स्केयरिंग, क्योंकि मैं फॉर्मूला बनाना है। ठीक है जी। स्केयरिंग हो गई आ तो की हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a.b लग गया, आ वाला सी स्केयर एज इट इज़ वैक्टर नाल ही चली जाना है। ठीक है जी। हुण मैनूं पता है विदाउट वैक्टर अगर करिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ਇਹਦਾ फॉर्मूला होंगे ना कॉज ए बी कॉस थीटा। तो थीटा मेरे को कितना आ रहा है, अगर ए डॉट बी कर दूँ इन्हों दोनों का, तो थीटा जो मैं इधरों देखूँगी तो थीटा मेरे को आही आ रहा 180 डिग्री माइनस सी इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है जी। नैक्सट देखो जिमें प्रूव दैट एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सैमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो वही आ कि तुम हाफ सर्कल बनाओगे, सैमी का मतलब क्या है, हाफ सर्कल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, दैन वो देखोगे कि जो थोड़ा एंगल आ वो किन्ने डिग्री का बनता है। थानू पता 90 डिग्री का बनता होंगे राइट एंगल ट्राइंगल सैमी सर्कल से। ठीक है जी। तो बस वही है कि तुम उस टर्म को किस तरह प्रूव करना है, अपने को नाम किदा देने उन्होंने वैक्टर्स को, जिमें ए ओ बी आ, तुम इन्होंने वैक्टर्स को कोई भी अपने वालों नाम दे सकते हो। ठीक है जी। इन्हों के स्मॉल जोड़े एलीमेंट्स लैने आ या फिर स्मॉल लैटर्स लैने उन्होंने अपने नाम दे अलग अपने को नाम दे सकते हो। अगर उन्होंने इनवर्स करना है ऑपोजिशन डायरैक्शन च जाना है तो नैगेटिव च चले जाएगी, सेम डायरैक्शन च जाना है तो पॉजिटिव च जाएगी। सेम वही चीज़ा आ। ठीक है जी। हम थोड़ी ट्रिग्नोमैट्री और जोमैट्री दोनों को मिक्स कर रहे हैं वो। ठीक है। तो जोमैट्री थोड़ा पता ही आ कि रेडियस किहड़ा हुंदा आ। ठीक है जी। एंगल किस तरह फाइंड कर सकते हो, मिड पॉइंट्स किदा कर सकते हो, पोजीशन वैक्टर्स किदा फाइंड कर सकते हो, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां कॉन्सैप्ट्स ने, एल्टीट्यूड किदा लै सकते हो। ठीक है जी। ये सारिया चीज़ां ही ने। नैक्सट आंदा है एप्लीकेशन इन स्टैटिक्स, क्या वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है जी। तो फोर्स किस तरह लगती है बाय वर्क डन, कि अपने को कोई भी वर्क डन आ दैन डी अपनी की आ कि डिस्टेंस मूव कर रहा। ठीक है जी। फोर्स अपनी लग रही है, दैन आप डिस्टेंस चैक करांगे। ठीक है जी। कंसिस्ट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड दैट द बॉडी इज़ मूवड अ डिस्टेंस गिवन बाय डी। मतलब की है कि मेरे को कोई बॉडी है वो आप कोई फोर्स लगा रहे हैं दैन वो बॉडी मूव करूगी। ठीक है जी। दैन फिर आप डिस्टेंस देखा कवर करूगा वो जोड़ा भी, तो उन्होंने आप की बोलते हैं वर्क डन बाय फोर्स, जोड़ा आप फोर्स लगा के काम किया। ठीक है। मतलब आ चीज़ इत्थे पई हुई आ, हुण मैं इहदे फोर्स अप्लाई कर रही हाँ इनू मूव करन लई, मतलब इत्थे मैं फोर्स अप्लाई की अगे नूं जा रही है तो देखना कि कितना डिस्टेंस कवर किया और मैं इत्थे किहड़ी फोर्स लगाई आ। ठीक है। बॉडी ते कोई फोर्स लगाई वो मूव हो गई। ठीक है जी। डिस्टेंस कवर किया उन्हें वो की हो जाऊगा अपना डी, और जी फोर्स लगाई है वो की हो जाएगी एफ। वर्क डन इज इक्वल टू मैगनीट्यूड फोर्स इन डायरैक्शन ऑफ डी, कि जिस डायरैक्शन से आप लगाई है वो की हो जाएगी मेरी डी डायरैक्शन। तो यदा फॉर्मूला की होंगे है मैगनीट्यूड एफ वैक्टर कॉस थीटा इनटू डी वैक्टर मैगनीट्यूड। तो फॉर्मूला की बन गया एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर, क्योंकि अजे तक अपनी डॉट प्रोडक्ट की गल चल रही है तो इस तरह डॉट लगेगा। तो इन्हों सामने अप्लाई करते हैं। देखो अपने को वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ वैक्टर, वैक्टर गिवन आ डी वैक्टर, दैन जी उत्ते आप फोर्स अप्लाई की आ फोर्स भी गिवन आ। तो देखो अपने को एफ का आंसर की गिवन एफ वैक्टर 7 आई कैप माइनस के कैप, दैन मेरे को जो डी वैक्टर गिवन आ वो क्या डिस्टेंस 8 आई प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है जी। फॉर्मूला आप वर्क डन का पढ़ के हटिया हुणे। वर्क डन का फॉर्मूला की सीगा एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर। तो एफ वैक्टर मेरा कितना है 7 आई माइनस के कैप। ठीक है जी। डॉट 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है जी। हुण इन्होंने पता ही है कि मेरे डॉट प्रोडक्ट्स आ, तो मल्टीप्लाई करने ते की बन जाएगा 7 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करवाया तो नाल की आ रहा आ
आई दैन फिर 7 प्लस 7 2 दे नाल मल्टीप्लाई करवाया आई इंटू जे मतलब आई डॉट जे दैन फिर 7 प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई करवाया तो 5 दे नाल की हो रहा आई इंटू के दैन माइनस के मल्टीप्लाई करवा रहे हो तुसी 8 नाल तो की हो गया के इंटू आई प्लस माइनस माइनस 2 जे इंटू के दैन माइनस माइनस प्लस 5 इंटू के कैप इंटू के कैप इन्नी चीज़ बन गई। हुण ध्यान नाल अगेन वापस पुरानी चीज़ यूज़ हो रही है आई कैप इंटू आई कैप आई स्क्वेयर कैप के इक्वल सी जी 1 दे यूनिट 1 दे ठीक है यूनिट वैक्टर के इक्वल आंदा सीगा और आई इंटू जे 0 दे आंदा सीगा। याद आ ना सारिਆਂ ਨੂੰ कि आई आई जे जे के कैप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ यूनिट वैक्टर ਦੇ इक्वल ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ मतलब 1 ਦੇ इक्वल ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। आई जे जे के ਜਾਂ के आई ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ इक्वल ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ डॉट प्रोडक्ट 0 ਦੇ इक्वल ठीक है जी। तो हुण इत्थे अप्लाई करो 7 इंटू 8 56 दैन आई इंटू आई मतलब 1 तो ये की मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 14 आई जे का मल्टीप्लाई 0 माइनस 35 आई के ऑल्सो 0 माइनस 8 के आई का आंसर ऑल्सो 0 माइनस 2 जे के का आंसर इज 0 प्लस 5 के अगेन के स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट वैक्टर तो इसका आंसर कितना आ जाऊगा जी 1 ठीक है। तो की हो गया 56 0 हो गया 0 0 0 प्लस सारी टर्म 0 आ गई दैन नाल क्या आ गया प्लस लास्ट 5 तो 56 प्लस 5 61 यूनिट्स। उन्होंने यही बोलिया सीगा कि फाइंड द वर्क डन तो मेरा वर्क डन का आंसर कितना आ गया 61 यूनिट्स ठीक है जी। नेक्स्ट देखो फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स गिवन आ एक्टिंग ऑन अ particle such that the particle is displaced from the point A to B मतलब A to B तक पॉइंट गया फोर्स मेरे को गिवन पई आ हुण A भी फाइंड करना है A भी क्या होएगा डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट जोड़ा भी आप वैक्टर का फाइंड करना है तो डिसप्लेसमेंट की होंगी आ डिस्टेंस ठीक है जी। दैन फिर हुण मैं फाइंड किद्दां करूँगी आपको पता है पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए ये गल मोस्ट ध्यान च रखनी आ कि जो ए बी का जां बी ए का फाइंड करना आ जिहड़ी चीज़ अगे आ उन्हें पिछे जाना और जिहड़ी पिछे आ उन्हें अगे आ जाना ठीक है जी। दैन फिर मेरे को ए और बी वैक्टर्स पे हुए आ पुट कर दो दैन उन्होंने आंसर आ जाऊगा मेरे को ए बी वैक्टर का आंसर आ गया और ए बी वैक्टर बी का डिसप्लेसमेंट वैक्टर और डिसप्लेसमेंट मतलब ए तो बी तक जाऊगा डिस्टेंस हो गया ये मतलब डी की गल हो रही है तो फॉर्मूला लगा दो वर्क डन का एफ डॉट डी वैक्टर एफ ऑलरेडी सी डी आप फाइंड करती तो पुट करके आंसर नू सॉल्व आउट कर देना ठीक है जी। नैक्सट आ गया क्रॉस प्रोडक्ट हुण ध्यान नाल दिमाग च रखना जिहड़ा मेरा डॉट प्रोडक्ट से उन्होंने आप स्केलर बोलते सी और जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आ इनू आप की बोलांगे वैक्टर जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट से उहदा आंदा सी इत्थे कॉस थीटा और जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आ उत्थे की आऊगा साइन थीटा कि उहदा फॉर्मूला की आ ए क्रॉस पहले डॉट बोलते सी ना हुण इत्थे क्रॉस दा साइन आया ए क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप ठीक है जी। ਇਹਦਾ वाला फॉर्मूला आ तो ध्यान च रखना है ठीक है। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को मिक्स नहीं करना है ध्यान च रखना और ये कमूटेटिव प्रॉपर्टी आ होंगी नहीं है ठीक है बिकॉज ये जी कमूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कमूटेटिव प्रॉपर्टी मेरी की होंगी आ ए क्रॉस बी क्रॉस ए बट ये क्या है माइनस हो इट्स नॉट कमूटेटिव ये वाली जे माइनस आ जाऊगा तो ये क्या कि यह कमूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होएगी ठीक है जी। बाकी हुण देखो ध्यान च रखनी हर छोटी छोटी चीज़ इत्थों एक डिफरेंस तो क्रॉस और डॉट का पता चलिया दूसरा पता चलिया उन्होंने नाम का कि वैक्टर क्रॉस बोलते हैं दैन जो डॉट होंगे उन्होंने स्केलर बोलते हैं। नैक्सट थर्ड चीज़ जी आप पिछे पढ़ के आए हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिट वैक्टर बट ये आई क्रॉस आई वो सी आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यही पढ़िया सी बट ये क्या आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इन्हों का आंसर कि आ जाना 0 वैक्टर जद कि मेरा डॉट प्रोडक्ट की आया सी आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे सॉरी
ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੈਨ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, जोड़ा मेरा डॉट प्रोडक्ट से उन्हें की बोलिया सीगा आई डॉट आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, मतलब कि यूनिट वैक्टर दे इक्वल हुंदा सी। ठीक आ, वो कल्ला नहीं आ, उहदे नाल मतलब वही सेम जे डॉट जे दैन के डॉट के 1 1 दे इक्वल हुंदा सी। हुण यही क्रॉस प्रोडक्ट च आ जाना, वो की होना आई क्रॉस आई, जिदा डॉट च आप डॉट डॉट पाते सी ना, क्रॉस च आप क्रॉस पाना, दैन जे क्रॉस जे दैन के क्रॉस के, ये सारे किहदे कोल आने आ, जीरो वैक्टर दे। ये विच की सी डॉट प्रोडक्ट च 1 वैक्टर दे, क्रॉस प्रोडक्ट च 0 वैक्टर दे कोल आ जाने। ठीक आ, इन्नी गल समझ लगी। हुण जिदा आप पिछे सीगा कि आई डॉट जे और जे डॉट के एंड के डॉट आई सारे किहदे कोल सी, जीरो वैक्टर ते। बट ये की आ, हुण क्रॉस टर्म च की आ जाना मेरा, जिहड़ा आई क्रॉस जे होगा वो के वैक्टर दे कोल आएगा, जे क्रॉस के होएगा वो आई कैप दे कोल आएगा, दैन के क्रॉस आई होएगा वो जे कैप दे कोल आएगा। मतलब आई जे का क्रॉस होगा के दे कोल, क्योंकि इच के नहीं आ, दैन जे के च देखो आई नहीं आ तो आई दे इक्वल, दैन के आई दे विच जे नहीं आ तो यह जे दे इक्वल। ठीक है जी, डिफरेंस आ, तो ध्यान रखना इन्हां गल्लां दा। नैक्सट एरिया ऑफ द पैलोग्राम ए बी सी जो फाइंड करोगे, फॉर्मूला किहड़ा लगेगा, आ वाला क्वाड्रिलेटरल दा दिस। ठीक है जी, तो सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ जिन्होंने आप ध्यान च रखना है और डायरैक्ट अपलाई करने। ठीक है, दैन जो तुसीं ए क्रॉस बी करना है तो इस तरह करना है। ये सारे सम्स दे विच आपां जदों इन्हां नूं अपलाई करवा देंगे ना तो थानू ईजी रह जाएगा। वही लैग्रांजेस आइडेंटिटी फॉर्मूलेज नोट डाउन करी जाओ। ठीक है जी, हुण इन्हां सारियां नूं आपां डायरैक्ट अपलाई करवाने सम्स दे उत्ते। हुण देखो मेरे को ए वैक्टर गिवन है, बी वैक्टर गिवन है, दैन शो दैट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट वाला पता चल गया से किस तरह कराने आ। हुण इन्हां नूं देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट किदां सॉल्व आउट करीदा। गिवन की है जी ए वैक्टर लिख लो, दैन फिर बी वैक्टर गिवन आ। ठीक है जी, लिख लिया। हुण सॉल्व आउट करन दा तरीका की है, ए क्रॉस बी लिखो आई कैप जे जे कैप दैन के कैप, लिख लिया। हुण आई दे इहदे अगे की कुछ नहीं है तो 1 होएगा तो 1 लिखो, दैन नैक्सट बी दे अगे आई नाल की आ 2, जे ते आ जाओ कुछ नहीं है, मतलब -1 दैन -3 दैन 2 दैन -4 लिख लिया। हुण इहदे विचों आई कैप की वैल्यू लिखो, पता है सारे मैट्रिक्स डिटर्मीनेंट कर चुके हैं ना, तो की वैल्यू आनी है -1 2 -3 -4, दैन क्या है ना -j, आ वाली लाइन ते आ वाली गई तो की बच गया 1 2 2 -4 प्लस के कैप, तो आ वाली सारी लाइन गई, बच गई जस्ट 1 -1 2 -3। ठीक है जी, तो सॉल्व आउट करवा दो। -4 इंटू -1 पॉजिटिव द 1, -3 इंटू 2 -6, बट फॉर्मूले का इत्थे लग जाना है। ठीक है जी, फॉर्मूले वाला माइनस भी लगना है ना, तो इधर क्या गया -j, तो की हो गया -4 दैन -2 इंटू 2 4 प्लस के कैप -3 माइनस दैन 2 नूं -1 दे नाल मल्टीप्लाई करवाया, तो की हो गया 4 + 6 आई कैप -j -8 प्लस के कैप -3 की हो गया -2 नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करवाया प्लस द 2, इन्नी चीज़ होगी। तो ये की आ गया मेरे को 10i माइनस प्लस 8j दैन के दा आंसर आया ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का। हुण ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह आप करते सी और क्रॉस प्रोडक्ट आप किस तरह कर रहे हैं।
ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करनी हैगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਗੇਨ बी क्रॉस ए कर दो, ठीक है। और नाल बाद विच किया कि माइनस लगाना है, तो देखते हैं बी क्रॉस ए कर दूँगे तो की हो जाना वही सेम आई जे के, लास्ट च आपां माइनस चेंज कर देंगे। हुण इहदे विच की है वापस आ रहा उही ए किता सी ए क्रॉस बी, मतलब ए वालियां टर्म्स दैन बी वालियां टर्म्स। हुण अपनियां की हो रहा बी क्रॉस ए, तो पहलो बी वालियां टर्म्स फिर ए वालियां टर्म्स, दैन बी की टर्म किहड़ी आ रही है 2, तो इत्थे करता आपां पुट 2, ठीक है जी, लग रही है समझ। फिर आ -3 -4। हुण ए आंसर्स किहड़े आ 1 -1 2, तो पुट कर दो 1 -1 2। जो आप ए क्रॉस बी किया सीगा, ए वाली सारी टर्म उपर रखी सी, दैन बी वाली सारी टर्म नीचे रखी सी, मतलब वही आई नाल जे दी के नाल। हुण मैं करन लगी बी क्रॉस ए, तो बी दियां सारियां टर्म्स उपर आ जाणगियां, दैन ए दियां सारियां टर्म्स नीचे आ जाणगियां, बट आउणियां अकॉर्डिंग टू आई दे नाल आई दियां, जे दे नाल जे दियां और के दे नाल के दियां, ठीक है जी, ये नहीं चेंज करनियां। हाँ जी, फिर वापस वही आई, तो मेरा की हो गया -3 -4 -1 2 माइनस जे कैप, तो की हो जाएगा 2 -4 1 2, दैन प्लस के कैप 2 -3 1 -1, ठीक है जी। सॉल्व आउट कर दो, की हो रहा है -6 दैन -4 माइनस जे कैप, की हो रहा 4 + 4, क्योंकि फॉर्मूला तो हम थानू लगाना आ गया ना, जो ऊपर लगा रहा सी, मैं डायरैक्ट इत्थे कर रही हूँ के कैप -2 + 3, तो आंसर कितना आ रहा -10 आई कैप -8 जे दैन +1 के कैप, इन्ना आंसर आ गया मेरे को। हुण ध्यान नाल देखो, जो मेरा ए क्रॉस बी का आंसर आया सी वो सी ++ नैगेटिव, मतलब 10 8 1, दैन हुण जो बी क्रॉस ए है वो की है नैगेटिव का 10 नैगेटिव का 8 पॉजिटिव का, इत्थे नैगेटिव का सी, इत्थे आ गया पॉजिटिव का। टर्म्स सेम आ, चेंजिस किहड़े होए सिर्फ साइन दे, जिहड़े इत्थे ++ दे सी इत्थे नैगेटिव दे आ, जिहड़े इत्थे नैगेटिव दा सी इत्थे प्लस दे आ, बाकी 10 8 के ये सारा सेम आ रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि जस्ट जिहड़ी चीज़ चेंज हुई की हुई आ ए क्रॉस बी हैगे सेम ही आ, बट जिहड़ा मेरा फिर बी क्रॉस ए आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ जस्ट माइनस। हुण देखो ए क्रॉस बी है ना, जो फिर मैं बी नूं अगे लिखना सीगा तो डायरैक्शन चेंज हो रही सी, और डायरैक्शन चेंज करने नाल इहदा मतलब कि आपां माइनस पाने अगे, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, किस तरह मतलब वही चीज़ देखो बार बार वापस रिपीट करा रही हूँ, तो भुलना नहीं आ। मतलब ए बी सी जो आप बी नूं अगे लिखना आ तो डायरैक्शन चेंज करनी, इसका मतलब माइनस पा देना, ठीक है। सेम ए क्रॉस बी पर चलता पाया है वैक्टर्स से, तो जो मैं बी अगे रखना इसका मतलब किया कि उत्ते मैं माइनस पाता, बिकॉज आंसर्स जो वो माइनस का ही डिफरेंस आ रहा, ठीक है जी। डायरैक्शन सेम आ, मतलब नंबरिंग सारी सेम हो रही है, बट चेंजिस किहड़े आ रहे हैं वही डायरैक्शन दे, तो आप उहदे अगे की पाता फिर माइनस, बिकॉज सारा आंसर ये माइनस च ये पॉजिटिव च। नैक्सट देखो फाइंड मैगनीट्यूड ए क्रॉस बी वैक्टर का, तो किया इफ ए गिवन आपां नूं बी वैक्टर गिवन आ, ए क्रॉस बी हुण तुहानूं फाइंड करना आ गया, वैल्यूज़ फाइंड कर लईआं आपां, ठीक है जी। हुण गल हो रही है मैगनीट्यूड की, तो मैगनीट्यूड च आपां नूं पता ही सी कि x² + y² + z² का आंसर करके सॉल्व आउट कर देना, ठीक है जी। नैक्सट आ फाइंड लैमडा इफ आपां नूं आ दो क्रॉस वैक्टर दिते आ जिहड़े कि 0 वैक्टर के इक्वल आ, इन्हां दे विच फाइंड की करना है आपां लैमडा, ठीक है जी। तो लैमडा अपने को आ पिया होया है, तो फाइंड करना, देखो दोनों प्रोडक्ट का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करवावांगे, ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट करने तो बाद आपां 0 वैक्टर के इक्वल रखी जा रहे हैं, फिर आई वाली वैल्यू नूं जे नूं के नूं सारिਆਂ नूं 0 के इक्वल रख देंगे, तो वो मेरे को किहदा आंसर आ जाना जी लैमडा का, ठीक आ। तो वही है ईजी कॉन्सैप्ट्स आ, बस यह कि हुण नवीं थोड़ी बहुत चीज़ ऐड करी जाते हैं, तो अपने को थोड़े थोड़े नंबरस चेंज हो जा रहे हैं कॉन्सैप्ट्स के। हुण ये देख लो फाइंड द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द वैक्टर्स, वैक्टर्स गिवन आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, मतलब जो वैक्टर्स गिवन ए बी ते क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, ठीक है। दैन आप उन्होंने यूनिट वैक्टर मतलब यूनिट वैक्टर उन्होंने फाइंड करने बोलिया, ठीक है जी। परपेंडिकुलर तो आपको पता है कि आप फॉर्मूला की आ परपेंडिकुलर यूनिट वैक्टर का ए क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वैक्टर। हुण ए क्रॉस बी वैक्टर तो तुसीं फाइंड कर लिया,
ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਾ ਦਿਓ, x² y² z² ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਔਰ B ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹੀ x² + y² z² ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, AB sin θ ਵੇਅਰ θ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਆ B ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਡਾਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਵੈਕਟਰ B ਵੈਕਟਰ ਦੈਨ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ cos θ ਤੋਂ θ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, A क्रॉस B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ A क्रॉस B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਦੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਈਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਥੀਟਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵਾਲੀਆਂ, 180 ਡਿਗਰੀ -C ਐਂਗਲ ਜਾਂ A ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ A + B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ A + cos B, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਈਨ A × cos B + cos A × ਸਾਈਨ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਫੋਰਸ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਫੋਰਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈਟ F ਬੀ ਅ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ B, ਲੈਟ A ਬੀ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ F ਵੈਕਟਰ ਅਬਾਊਟ A ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ AB क्रॉस F ਵੈਕਟਰ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਲਾਈਨ, ਫੋਰਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਟਰਮ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ